Okay. So whether my slide is visible to all of you? Okay, my screen is Sir. shared, right? Yeah, Yes, sir. yeah. Yes, yes. Yeah. Okay. So predictive analysis. Uh, okay, let's go ahead with this one. So what do you mean by predictive analysis? Predictive analysis is nothing but analyzing the current and the historical facts to make prediction about future or unknown events. So what do you understand by this one is, see, whatever data we are having currently, right, and whatever is the past record of the data we might have collected, we're going to analyze that entire stuff, and based on those data, we will going to derive certain kind of relationship, and based on that relationship, if any unknown data will come to us, okay, we will be able to, I mean, for that particular unknown data, we will be able to produce certain output. This is what the idea. So this is what it's talking about, to make prediction about future or unknown events. Unknown events means any unknown data which will come. For that, we will be able to tell the output. So in the regression here, we'll be seeing the example of linear regression. So regression model is what? Regression model is normally used for numeric or continuous value prediction. So if we are having the numeric data, okay, and then if somebody will tell me to find out the output for any unknown data, I'll be able to do. First of all, I'll have to make the linear regression model of the entire data, and then whenever unknown data will come, I'll be able to tell based on that particular model. So once I'll have the model, I'll be able to tell. So this model is nothing but we will going to train that particular model based on our data set first, and then the model itself will going to derive certain kind of relationship, and based on that relationship, whenever a new data will come, it will be able to tell us something. It will be able to do certain kind of prediction. So for example, we have a lot of things like stock market price prediction, movie ratings, housing prices, salaries based on the experience of the employee. So we'll be doing this one, right? So based on the experience, if the experience is more, then we'll going to give the more salary, right? So that kind of prediction will be able to do. Now, for example, if you see here, predicting salary based on the experience, salary is the target variable. Now, one thing you will have to remember that there will be certain target variable, okay, which is called as the, I mean, for example, this column you can see this is a target variable, right? And this is what the year of experience. So based on this year of experience, the salary will be decided. So this salary is what dependent on this year of experience column. Okay. So always remember, in the whenever we will be talking in terms of regression, there will be two sets of variables will be there. One is the dependent variable and another is the independent variable. So for example, if I want to give you one very simple example, let's say in your company, if the company has asked you to calculate the annual sales or the forecast the annual sales, right? Then what you will going to think that your annual sale, what are the different factors which will going to affect your sales, right? For example, the number of employees, the number of work hours, then number of I mean the quantity of raw materials, right? So there are a lot of factors which will going to affect your annual sales of the company. So those annual sale, I mean those factors will be called as what? Those factors will be your independent variables, and your annual sales will be the dependent variable, which will going to depend on these different factors, right? So you can understand in this way that those are the factors which we will going to consider, those will be the independent variables, right? And the variable which will going to depend on those factors, that will be the dependent variable. For example, over here, if you're talking only with respect to only one factor, that is year of experience, right? And here, I mean salary, and here we are having the year of experience, right? So here our target variable which is dependent on the experience, okay, the salary is our target variable, and which is dependent on the year of experience. Now what will be, when we will design the model, then suppose how we will going to design the model. First of all, we'll have the training data, so we'll use that training data and we will use certain algorithm, right? And we will going to train our model. So after training, we will get one model. Now, to this particular model, if any new data will be given, then this model will be able to predict certain thing. This will be able to give the output. So, for example, suppose I am having this data 1.1
year 1.3, year 1.5, year 2 year, and these are the salary. So I will going to design one model based on this particular my data, right? And then in the future, if somebody will give me 3 years and they will ask me what will be the salary, then my model will be able to tell the salary of that particular employee who's having the experience of 3 years. Okay, so three which is not present in this one, right? Then also our model will be able to give the response. So let's now, whether all of you understood this. I mean, I kept this presentation very short and simple so that we can more focus on the implementation. But whether you understood what I wanted to explain, right? I quickly go to this notepad also, and I'll try to explain. Just wait. Sir, just repeat it Yeah. once, please. Okay. Okay. I'll explain over here, so it's better I'll write and explain you, right, so that you can understand in a proper way. Okay. So what I'm talking about over here is that is linear regression. Okay, linear regression. First of all, try to understand uh, what do you mean by regression, okay, and what do you mean by linear. Linear मतलब क्या है? Let's say suppose I am having two set of values x and y. Okay, so if I'm having a line like this, so the way x will increase, y is also increases. So there is some kind of relationship. This is called a linear relationship. X भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, right? So this is called as what? Linear. Both are linear to each other. So there is a linear relationship. Linear relationship. Okay. Now in regression, what happens? In regression, whenever we talk about in regression, we'll be having two variables. One is independent variables, and another is dependent variables. So the way independent variable will going to change, dependent variable will also be affected. Okay, for example, here you can say that this is a independent variable and this y is dependent variable, right? So we have to find out some relationship between y and x. So x increase हो रहा है मेरा, y भी increase हो रहा है, right? Because these are what the linear relationship. So y is dependent on the x vary हो रहा है, y भी vary हो रहा है, x increase हो रहा है, y increase हो रहा है, x decrease होएगा, y will decrease, right? Now similarly in the regression, so whenever you talk about in the regression में independent variable dependent variables होता है. Independent variables will be your different factors, जो मैंने factors explain किया आपको. For example, अगर कंपनी का annual sales आपको predict करना है, right? So annual sales मेरा क्या हो गया, जो मेरे को target मेरा है, annual sales मेरा target है, right? Output variable, target या output variable. Now ये annual sales मेरा different parameters, I mean it can be dependent on different parameters, right? For example, मेरे कंपनी में एम्प्लॉय कितना है, राइट? एम्प्लॉयज़ कितना है, कितना आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग कितना है डेली, देन रॉ मटेरियल्स कितना है, ओके? फिर सप्लाई चेन कैसा है, राइट? सो आई मीन from the with respect to company, you can analyze, right? There can be a number of different factors which can be there, which are independent, right? On these factors, these annual sales might be dependent. Clear? So in a simple terms, you can understand like those factors which will going to affect the output variable. Those factors we can say as what? Independent variables, and the thing which will going to affect, that will be our dependent variables. Okay. Now another thing. So what we do in this one, simple linear equation is what? Simple linear equation is your like y is equal to mx प्लस सी. ये इक्वेशन कभी देखा है आप लोगों ने? ये लाइन का इक्वेशन है, राइट? ये मेरा एक लाइन का इक्वेशन है,
where C is called as what? Intercept, and M is the slope of the line. M is the slope of the line. ये लाइन का इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन इन स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म. आप लोगों ने कभी देखा है इक्वेशन, राइट? 12th में देखा होगा, Yes, sir. राइट? y Yes, इक्वल टू sir. एम एक्स प्लस सी. या तो अगर मेरे पास स्लोप है और इंटरसेप्ट है तो आई कैन ड्रॉ अ लाइन, राइट? आई कैन ड्रॉ अ लाइन. सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पॉइंट है, x1 y1, राइट, और x2 y2. तो भी मैं y आई मीन लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ. फॉर एग्जांपल y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 is equal to y minus y1 upon x minus x1. So this is called as 2 point form, right? 2 point form line equation. हम लोग को इस पे ध्यान देना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे. अगर सोचो मेरा अभी अभी मेरे पास दो एक्सिस है, मैंने ये y एक्सिस लिया और ये मेरा x एक्सिस है. ठीक है, अगर समझ लो मेरा स्लोप 1 है, स्लोप मेरा 1 है, राइट? तो मेरा लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी. सी मतलब क्या? ये सी इंटरसेप्ट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस. लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5. अगर मेरा सी भी मैंने 0 कर दिया तो y इक्वल टू एक्स हो गया, राइट? y इक्वल टू एक्स हो गया, मतलब मेरा लाइन का इक्वेशन देखो ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है कोई भी. अगर इंटरसेप्ट होता तो वो वाले पॉइंट से पास होता था, बट यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि मैंने इंटरसेप्ट क्या कर दिया? 0 कर दिया. तो इंटरसेप्ट मेरा 0 है, तो y इक्वल टू एक्स मेरा इक्वेशन हो गया. मतलब ये लाइन मेरा 1045 का लाइन है, राइट? एग्जैक्टली 1045 का लाइन है. ये एंगल जो रहेगा वो 45 रहेगा, राइट? तो अगर 1 से इफ माई एक्स विल इंक्रीज बाई 1 यूनिट, राइट, तो y भी मेरा 1 यूनिट से इंक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x दिस विल बी इक्वली मैप. ओके, इट्स लाइक दिस. This is 2, this is 3, this is 1045 line. So I hope you are understanding what how if I'll change my slope of the line, right? मेरा लाइन का मैंने अगर स्लोप चेंज कर दिया तो मेरा लाइन ऐसे भी हो सकता है, मेरा लाइन ऐसे भी हो सकता है, मेरा लाइन ऐसे भी हो सकता है, राइट? डिफरेंट वे मेरा लाइन ऐसे भी हो सकता है, राइट? तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द लाइन एज वेल एज द इंटरसेप्ट. नाउ मेरा पॉइंट क्या बोलने का यहाँ पे, लाइक आई कैन गो इन मच डीप इन दिस वन, बट I want to make it on the surface, right, so that you can understand what is my point is. if somehow if somehow I know the slope of the line, अगर मेरे को slope of the line मालूम है, इंटरसेप्ट पता है, तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ लाइन, राइट? मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. क्लियर? अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मैंने प्लॉट किया डेटा सेट्स और मेरे पास ऐसा डेटा अवेलेबल है, राइट? ये मेरा डेटा सेट अवेलेबल है, इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट, विच विल गोइंग टू प्लॉट राइट इन अ मोमेंट. स्कैटर प्लॉट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन which will going to pass, let's say in this way, one line, let's say in this way. Okay, तो एक लाइन समझ लो यहाँ से जा रहा है. अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा लाइन है, समझ लो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ऐसा कौन सा लाइन है जो ज़्यादा डेटा सेट को कवर कर रहा हो, जो परफेक्टली ऐसा लग रहा है पास हो रहा है वहाँ से. तो देखो ये 3 तो अवॉइड कर रहा है डेटा सेट, राइट? 2 वाला थोड़ा पास से जा रहा है, 1 वाला ऐसा लग रहा है ज़्यादा कवर कर रहा है, राइट? अगर मैंने मेरा स्ट्रेट लाइन की जगह पे मैंने अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया, लेट्स से ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा डेटा सेट्स है. तो अगर मैंने लेट्स से मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया तो ये तो मेरा सब पॉइंट्स को कवर कर ले रहा है, राइट? बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कर्व. So this will exactly fit my data. This will exactly fit my data. This is called as overfitting. This is called as overfitting. Okay. There are 3 things: overfitting, underfitting. ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग नहीं होना चाहिए. अंडरफिटिंग मतलब सब डेटा सेट को कवर नहीं कर रहा, डेटा सेट्स मेरा इधर इधर है और मेरा लाइन कहीं और से पास हो रहा है. ओके,
तो ये अंडर फिट भी नहीं होना चाहिए, ओवर फिट भी नहीं होना चाहिए। अगर ओवर फिट हो गया डेटा सेट को तो ज़्यादा उसको बायस हो गया, आई मीन वो उस डेटा के लिए ज़्यादा ट्रेंड हो गया, राइट। तो फिर ओवर फिट हो गया तो वैसा सिमिलर डेटा आएगा तो हम लोग को आउटपुट है अगर अननोन जो भी हम लोग सैंपल्स देंगे तो आउटपुट अपना प्रॉपर नहीं आएगा अगर ओवर फिट हो गया। तो मेरा नॉर्मल फिट होना चाहिए, आई मीन ओवर फिट भी नहीं होना चाहिए, अंडर फिट भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ए मॉडल के थ्रू एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल ये समझ लो मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। अभी ये मेरे पास डेटा सेट्स अवेलेबल है। ओके, तो मैं ना यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ और समझ लो मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया और मैं क्या करूँगा, ये वाला ये जो भी डिफरेंसेस है, राइट, ये डिफरेंसेस है जो भी, इसको बोलते हैं रेसिडुअल एरर्स, राइट। ये पॉइंट्स के जो भी डिफरेंसेस है इसको बोलते हैं रेसिडुअल एरर्स। ये ना हम लोग हमेशा लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, और उसके बाद में रेसिडुअल एरर्स को कम करने का ट्राई करते हैं। तो एक टर्म है जिसको बोलते हैं कि RSC, राइट। तो वो जो एरर्स है स्क्वायर एरर हम लोग निकालते हैं और उसको हमेशा वो सम ऑफ द स्क्वायर एरर को हम लोग रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। तो जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेट्स से ये ड्रॉ किया मैंने, इधर से ड्रॉ किया, मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर सम ऑफ द स्क्वायर एरर्स जिसके अंदर सबसे कम आया उसको, वो लाइन को हम लोग बोलेंगे कि बेस्ट फिट लाइन है। तो अगर ये सिंपल लैंग्वेज में अगर समझ लो, अगर मेरा डेटा सेट ऐसा है, स्कैटर्ड है, और मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो जो प्रॉपरली ये डेटा सेट्स को आई मीन थोड़ा कवर कर रहा है, एक दो थोड़े बहुत डेटा सेट्स इधर उधर होंगे लेकिन मेरा ये डेटा सेट्स को कवर कर रहा है, राइट। तो अगर ये मेरा बेस्ट फिट लाइन है जिसके अंदर सम ऑफ द स्क्वायर एरर सबसे लेस आया, ऐसा लाइन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, राइट। एक बार मेरे को ये लाइन मिल गया, इसका मतलब मुझे एम मिल गया। एम मतलब क्या, स्लोप, एंड सी मतलब इंटरसेप्ट, राइट। अगर ये दोनों चीज मुझे मिल गया है, मतलब लाइन मिल गया मतलब स्लोप मुझे पता है एंड इंटरसेप्ट मुझे पता है। अगर कल को मुझे y इक्वल टू, मेरा इक्वेशन है mx+c लाइन का, राइट। कल को मुझे किसी ने बोला कि एक अननोन में x का वैल्यू दे रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, तो x अगर किसी ने 5 ईयर्स दे दिया तो ये मेरे लिए अननोन हो गया जिसपे मेरा डेटा ट्रेन नहीं है। बट अगर किसी ने मुझे अननोन ने वैल्यू x दिया तो मेरा लाइन का इक्वेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, y इक्वल टू mx+c। ये डेटा अननोन आया, m का वैल्यू पता है मुझे, c का वैल्यू पता है, तो y का वैल्यू आई कैन इजीली फाइंड आउट, राइट। So this is the idea behind this particular linear regression. So in linear regression, based on our scattered data, first we try to draw a best fit line. Remember this. First we try to draw a best Excuse fit me, sir. line. Somebody is waiting to join in. Okay, okay. Sorry. Oh, so I thought I was already late, so nobody is remaining. Okay. Okay, thanks for telling me. So what I was telling that if will have the data, we will first draw the best fit line, which will best fit all our data which is available, right? तो ये कैसे बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं, ये बेस्ड ऑन दी सम ऑफ दी स्क्वायर एरर। से एवरी लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो एरर आता है, राइट, मतलब पॉइंट्स इधर उधर रहेंगे, वो एरर्स का स्क्वायर्स निकाल के जो डिफरेंसेस है उसका, फॉर एग्जांपल समझ लो मेरा पॉइंट इधर है और ये वाला एक्चुअल पॉइंट इधर है और मेरा लाइन का पॉइंट इधर है, तो इसके बीच में कुछ डिफरेंस आया, राइट। तो ये मैं क्या करूँगा, ये डिफरेंस जो निकालूंगा उसका स्क्वायर करूंगा, प्लस दूसरा पॉइंट लूंगा उसका डिफरेंस निकालूंगा उसका स्क्वायर करूंगा। ऐसे सब टोटल पॉइंट्स का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करने के बाद में जो भी वैल्यू आ रहा है, राइट, ये वाले लाइन का मैं नोट कर लूंगा। तो लेट से ये मेरा L1 लाइन है, मैंने इसका नोट कर दिया। फिर मैंने और एक लाइन ड्रॉ किया L2, उसका भी ऐसे सम ऑफ द स्क्वायर एरर मैंने नोट कर दिया। तो जिस लाइन का सबसे लिस्ट आया वो वाला बेस्ट फिट लाइन हो जाएगा मेरे। एक बार मैंने बेस्ट फिट लाइन निकाल लिया, उसके बाद में मुझे स्लोप पता चल गया, मुझे इंटरसेप्ट पता चल गया। तो कोई भी मुझे कभी भी अगर मुझे अननोन वैल्यू x देगा तो मेरे पास दो ऑलरेडी नोन वैल्यूज है, x वाला सिर्फ अननोन वैल्यूज होगा, तो आई कैन इजीली डिटरमाइन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। दिस इज द इंटायर आइडिया बिहाइंड लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिकली अपना फंक्शंस और लीनियर मॉडल करके फंक्शन है,
that will automatically train the data. Based on the data, it will automatically will going to derive this particular equation. तो वो स्लोप डिराइव कर लेता है, इंटरसेप्ट डिराइव कर लेता है, राइट। एंड फिर हम लोग फ्यूचर में कभी भी कोई भी एक्स अननोन वैल्यूज उसको पास करेंगे, वो अपने को वाई बता देगा। तो ये क्लियर हो गया आइडिया आप लोग को सबको, इसमें हम लोग क्या करने वाले बेसिकली? यस सर। सर एक बार प्लीज रिपीट कीजिए ना ये part। यस सर। अच्छा अच्छा, कहाँ से करूँ रिपीट, मतलब वापस से पूरा स्टार्ट करूँ? ये सम ऑफ स्क्वायर्ड लाइंस जो आपने बोला ना वो part। ओके ओके ओके। देखो इसके अंदर और भी बहुत कुछ डीप में है, बट मैं वो सब डेरिवेशन में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप लोगों के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं, फिर भी मैंने अंदर तक थोड़ा लिया। आई मीन देखो ये क्या होता है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर रिग्रेशन नेम है, लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर का मतलब पहले समझ लो, लीनियर मतलब होता है कि एनीथिंग, फॉर एग्जांपल इफ टू वेरिएबल्स आर देयर एक्स एंड वाई, राइट, तो ये दोनों में लीनियर रिलेशनशिप, मतलब अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। ओके, ये इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। अगर एक्स कम होगा तो वाई भी कम होगा। ओके, नाउ रिग्रेशन में ये ध्यान में रखो कि रिग्रेशन, हाँ सर एक क्वेरी था, और हाँ, yes, लीनियर रिग्रेशन में जो जितना एक्स बढ़ रहा है उतना वाई बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनली सेम बढ़ना चाहिए कि कुछ भी वेरिएबल प्रोपोर्शनली सेम बढ़ना चाहिए, बट जितना एक्स बढ़ रहा है वाई डिक्रीज भी हो सकता है। समझ में आया क्या? बट रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए। सेम होना चाहिए। ओके ठीक है। या रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए, मैं बोला समझ। ऐसा भी हो सकता है, देखो मेरा लाइन ऐसे भी हो सकता है, ये एक्स है वाई है, तो मेरा लाइन ऐसे भी हो सकता है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है। ओके, बराबर है, बराबर है। तो ये निगेटिव रिलेशन हो गया, बट रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, सर्टेन अमाउंट से लेकिन बढ़ना चाहिए जो भी वैल्यूज बढ़ रहा है, राइट। हाँ, मतलब दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। हाँ, मतलब वन पे जो आ रहा है 2 पे आ रहा है, तो इसमें कुछ प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस रहना चाहिए। ओके, ठीक है। या तो लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, तो जब हम लोग रिग्रेशन का बात करते हैं तो इसमें ध्यान में रखना, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या हो गया अपना? फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल्स हो गए जो फैक्टर्स हो गए जो अफेक्ट करेगा आउटपुट वेरिएबल को। तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा टारगेट वेरिएबल क्या होगा। जैसे मैंने बोला अपनी एग्जांपल में हम लोग को सैलरी डिटरमाइन करना है, राइट। सैलरी मेरा मैंने बोला कि डिपेंड कर रहा है चलो एक्सपीरियंस पे। अभी मैंने एक सिर्फ एक ही फैक्टर लिया, कंसीडर किया, एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय। बट जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस के बेस पे मैं सैलरी डिसाइड करूँ, मैं एज के बेस पे भी डिसाइड कर सकता हूँ। मतलब एक्सपीरियंस, एज क्या है उसका, क्वालिफिकेशन क्या है उसका, राइट, और टेक्नोलॉजीज क्या क्या आता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स मेरा हो सकता है, उसके बेसिस पे मैं सैलरी डिसाइड करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल रखने के लिए, देखो लीनियर रिग्रेशन में भी अलग टाइप्स का होता है। एक तो सिंपल होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और एक दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मतलब क्या है? मल्टीपल फैक्टर्स अगर आप लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे। इफ अगर एक ही फैक्टर आप लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे। ओके, अब रिग्रेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो मैं दो टाइप्स आपको बताता हूँ। एक तो होता है कि ये लीनियर रिग्रेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं जो नॉर्मली हमारा नंबर से रिलेटेड होता है, और एक होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ऐसे अगर आप देखोगे रिग्रेशन के बारे में तो आपको 8-10 टाइप के रिग्रेशन मिल जाएंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब जैसे कि ये मुझे कुछ अगर न्यूमेरिकल कुछ कंटिन्यूअस वैल्यूज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस वैल्यूज है, मुझे प्रेडिक्शन करना है, राइट, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया। बट अगर मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा क्लास है, जैसे कि फ्लावर्स मेरे को प्रेडिक्ट करना है, तो सिटोसा है कि कौन सा फ्लावर है, राइट, तो उस केस में मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकता हूँ। क्लासिफिकेशन वाले प्रॉब्लम में मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ। लॉजिस्टिक में भी दो टाइप कर सकते हैं हम लोग, सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसमें अगर मैं एक ही फैक्टर कंसीडर कर रहा हूँ तो सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर मैं मल्टीपल फैक्टर्स के बेस पे मेरा क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ तो वहाँ पे आ जाएगा मेरा मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम लोग बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी बोल सकते हैं कि 0 और 1 में क्लासीफाई करेगा। अगर 1 आया तो मतलब लेट से कैट है, अगर 0 आया मतलब डॉग है, राइट। तो 2 डिफरेंट क्लासेस को मैं वहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। और मल्टीपल रिग्रेशन में, मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हम लोग डिसाइड कर सके कि कौन से वैल्यू की रेंज के बीच में आया तो डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा क्लास होगा। तो मेरे को हम लोग को अभी फिलहाल ये नहीं देखना है, मुझे कवर करना है, तो मैं एक पूरा विथ कोड कवर करूंगा लीनियर रिग्रेशन, राइट। तो लीनियर रिग्रेशन में दो टाइप हो सकता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन।
यहाँ पे हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन करेंगे जहाँ पे एक ही फैक्टर हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट। और जिसके अंदर दो मैं कोड आप लोग को दे दूंगा मल्टीपल रिग्रेशन करने के लिए भी, जो आप कर सकते हो बाद में। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सैलरी डिटरमाइन करेंगे डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय। अब इसमें क्या होता है कि मुझे सैलरी डिटरमाइन करना है और बेस्ड ऑन क्या, एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय को कंसिडर कर लो कि ये अपना एक्स वेरिएबल है और ये हमारा वाई वेरिएबल है, जो कि मेरा ये टारगेट वेरिएबल है, ये मेरा टारगेट वेरिएबल। तो इसको मान लो कि ये जो मेरा टारगेट है ये मेरा डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, ये मेरा एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय पे, राइट। तो एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो मेरा टारगेट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ओके, नाउ अब हम लोग इन लोग के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो एक लीनियर रिलेशनशिप हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास डेटा दिया होगा, दो कॉलम का डेटा दिया होगा, एक वाई का डेटा दिया होगा, एक एक्स का डेटा दिया होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, राइट, 2.5 ईयर्स, ऐसा सब डेटा दिया होगा मेरे पास में। और इन लोग का सैलरीज, लेट से इसका सैलरीज मैंने बोल दिया कि 3 लाख हो गया, राइट, इसका 4 लाख हो गया, इसका 6 लाख, इसका लेट से 8 लाख, इसका लेट से 2.5 लाख, राइट। मतलब मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी दे दिया, लेट से 3.5 लाख। सो ये दो कॉलम हमारे पास में होंगे। अभी ये दोनों बेस्ड ऑन ये डेटा सेट हम लोग को एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मॉडल अपने आप ट्रेन करके ड्रॉ कर लेगा। जब मॉडल हमारा रिग्रेशन लाइन बना लेगा, जब ये लाइन बन जाएगा, तो कोई भी अगर लाइन बनेगा तो समझ लो ये मेरा डेटा सेट से जो स्कैटर्ड है, राइट। मैं जब ये प्लॉट करूंगा तो मेरा डेटा सेट ऐसा कुछ दिखेगा मुझे, ये मेरा एक्स वेरिएबल होगा, ये मेरा वाई वेरिएबल होगा। अब मुझे एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना है जो इसके थ्रू पास हो, बेस्ट फिट लाइन। अभी बेस्ट फिट लाइन कैसे बोलेंगे कि यही लाइन मेरा बेस्ट फिट है? कोई बोलेगा कि मैं इधर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा बेस्ट फिट लाइन, कोई बोलेगा नहीं ये वाला मेरा बेस्ट फिट लाइन है, राइट। तो बेस्ट फिट लाइन डिसाइड कैसा करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ये मेरा डेटा सेट है, ये मेरा लाइन कुछ डेटा सेट के ऊपर से जाएगा, पास होगा, कुछ डेटा सेट्स, कुछ डेटा इधर उधर होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला डेटा सेट कंसिडर करो, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग मेरा इधर पॉइंट है, लाइन मेरा इधर से पास हो रहा है लेकिन डेटा सेट अबव है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से ये लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, राइट। ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस मैं निकालूंगा, इसको क्या बोलेंगे, ये मेरा एक्चुअल पॉइंट है, राइट, ये मेरा एक्चुअल पॉइंट है और ये मेरा प्रेडिक्टेड पॉइंट है। करेक्ट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, राइट। ये जो डिफरेंस होगा इसको बोलते हैं रेसिडुअल एरर्स, रेसिडुअल एरर्स। तो लेट से ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। लेट से मैंने कंसिडर कर लिया कि x2 माइनस x1 मत कर रहा हूँ, राइट। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये निकाल रहा हूँ। अब इसका मैं स्क्वायर कर लूँगा। ऐसे ही मैं क्या, स्क्वायर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो निगेटिव भी आ सकता है, अगर नीचे होगा तो मेरा निगेटिव भी वैल्यूज आ सकता है, राइट। तो मैं ऐसे सब डेटा का डिफरेंसेस निकाल के स्क्वायर करता जाऊंगा। इसको बोलते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्ड, ओके, सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर्स। तो ऐसे सबका मैं कलेक्ट करके एक निकाल लूंगा। लेट से मेरा वैल्यू आया 5, मैं एक एज्यूम कर रहा, मेरा वैल्यू आया 5। किसके लिए? ये L1 के लिए। मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया L1 के लिए। अब मैं क्या करूंगा, और एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये मेरा डेटा सेट है। लेट से मैंने L2 ड्रॉ किया, इसका भी मैंने सम ऑफ द स्क्वायर एरर मैंने निकाल दिया, सम ऑफ द स्क्वायर एरर्स। नाउ अगर इसका वैल्यू समझ लो आ गया 3, तो अभी 3 लेस है 5 से, तो मैं क्या बोलूँगा, ये लाइन अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है L2 L1 की कंपेरिजन, राइट। तो ऐसे में मल्टीपल्स लाइन ड्रॉ करने के बाद में अभी मशीन में ऑलरेडी वो फंक्शंस लिखा है, राइट। मैं प्रैक्टिकली कैसा करेंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद में, ट्रायल एंड एरर करने के बाद में अपने को पता चलेगा कि एक लाइन है जो जिसका सम ऑफ द स्क्वायर एरर सबसे कम आ रहा है, राइट, उससे कम किसी का नहीं आ रहा है। तो वो वाला लाइन हम लोग सिलेक्ट करेंगे। लेट से L5 आया, L5 पे मेरा 1 आ रहा है, तो मैं बोलूँगा L5 मेरा ये बेस्ट फिट लाइन है, जो मेरा डेटा को बेस्ट फिट कर रहा है। तो ये वाला लाइन में ड्रॉ कर दूंगा अभी। तो समझ लो मेरा डेटा सेट्स ऐसा स्कैटर्ड है, सॉरी, ये मेरा डेटा सेट स्कैटर्ड है और मैंने एक L5 लाइन ड्रॉ किया, ये मैं इसको बोल रहा है मेरा बेस्ट फिट लाइन है। कैसे मैंने डिसाइड किया बेस्ट फिट लाइन? बिकॉज मेरा सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर इसके लिए सबसे कम है। तो सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर इज लेस फॉर दिस पर्टिकुलर line, that's why I am saying this is my best fit line. Now once I got this particular line,
So I know the equation of the line is what y is equal to mx plus c. This is my line equation. So this is nothing but the slope of the line, and this is the intercept. This is the intercept. So if I know the intercept and if I know the slope and if I know the x का value, for example किसी ने मुझे बोला 10 years experience एम्प्लॉय का मुझे सैलरी बता, तो 10 years में x की जगह पे प्लेस कर दूंगा, राइट। और m और c ऑलरेडी मुझे पता है बिकॉज बेस फिट लाइन मुझे पता है, तो m और x मेरे पास स्लोप और इंटरसेप्ट ऑलरेडी होगा। ओनली थिंग मेरे पास अननोन वैल्यूज जो भी फ्यूचर में आएंगे वो x की जगह पे मैं रख दूंगा। सो इफ आई एम हैविंग ऑल दिस थ्री वैल्यूज, y मैं ऑलरेडी कभी भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, राइट। y में कभी भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन ऑल दिस वैल्यूज। So this is the concept of linear regression model. In linear regression model, the model will going to draw a best fit line, and once the model will have the best fit line, so it can easily predict for any particular year of experience values, right? Any new data, unknown data. Clear? Yes. All of you? Okay. So let's try to implement this one, right? And we will see practically how this thing will going to happen. So I hope आप सभी लोगों ने या सर एक क्वेरी था। यस यस बोलिए। सपोज आई हैव डन वन सर्वे दैट क्वालिटी ऑफ एनी इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एनी इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके, हाँ, इज बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स लाइक टीचिंग पैरामीटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन लोकेशन ऑफ द कॉलेज, देयर 4-5 पैरामीटर्स आर देयर, ठीक है। और हमने स्टूडेंट से क्वेश्चन भरवाया, फैकल्टी से पेरेंट्स से भरवा दिया, जस्ट टेक एन एग्जांपल। इसको हम रिग्रेशन में मैप करते हैं तो क्वालिटी इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको अगर हम रैंकिंग देते हैं कि सपोज आई वन इज वन रिस्पोंडेंट इज गिवन सम रैंक कि हाउ दे गिव अ रैंक इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर आउट ऑफ 5 का जो स्केल है 1 to 5, 0 to 5 में सब पॉइंट दे दिया। इसको हम सब कैसे इसको मैप कर सकते हैं एनालिसिस? तो देखो ये जो आपने बात किया ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आ गया, समझ में आया क्या? तो क्योंकि आपने क्या बोला कि 1 से लेके 5 तक, मतलब आपके पास 5 क्लासेस, एक में किसी का कॉल अलग है, कोई और वेट कर रहा है क्या? So someone is waiting. अच्छा हेलो, हाँ सर, ओके आई एम एडिंग या ओके, सो फ्यू पीपल वर वेटिंग या। तो आपने जो अभी बात किया वो समझ लो कि मेरे पास 5 क्लासेस है, राइट। आपने रेटिंग दे रहे हो 1 से लेके 5 तक, तो मेरे पास ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हो गया, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन सम एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, राइट। तो लॉजिस्टिक में यूज कर सकता, बट दूसरे एल्गोरिथम भी है क्लासिफिकेशन में जिसके अंदर मैं अलग अलग क्लस्टर बना सकता हूँ, राइट। तो उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा कि आउटपुट मेरा 1 आ रहा है कि मेरा 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है, मतलब कौन से क्लास का आउटपुट है, तो उस हिसाब से मैं क्वालिटी डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरा सिंपल लीनियर रिग्रेशन में नहीं जाएगा, ओके। अच्छा, हाँ, आप अगर सिर्फ ऐसे बोलते हो, हाँ आप अगर अगर- ऐसे बोलते हो कि समझ लो आपको क्वालिटी बताना है, बट आपको क्वालिटी किस पे बताना है, जो वहाँ पे फैकल्टी उन लोग के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, बराबर, फैकल्टी के एक्सपीरियंस पे बेसिस पे, तो आप ये बोल रहे हो तो फिर ये लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैं सीधा दोनों इनपुट ले रहा हूँ जो मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, और उनके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कभी भी, ओके। मतलब फिर फैकल्टी को कितने मार्क्स मिले उस बेसिस पर? हाँ, फैकल्टी को कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से मैं क्वालिटी बता सकता हूँ, बट ये मेरा आपको भी पता है कि सिर्फ फैकल्टी के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आई मीन फैकल्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्वालिटी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट। तो ऑब्वियसली मेरे को मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर करना ही पड़ेगा, और फिर मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद में मेरे को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ एक वेरिएबल को प्रेडिक्ट नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो अगर आप क्लासिफिकेशन में नहीं करना चाह रहे हो, सिर्फ क्वालिटी डायरेक्ट प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो तो आप कर लोगे, बट इसको रेटिंग देना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल अगर समझ लो मैंने शेयर मार्केट का एग्जांपल ले लिया, राइट। अब मुझे पता है कि स्टॉक का प्राइस है, अब एक एग्जांपल लेता हूँ, स्टॉक प्राइस। आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, राइट, आई मीन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक में हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं, राइट, और अगर ऊपर गया तो उसको सेल कर देते तो प्रॉफिट होता है। अब स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो सकता है, तो मैं बहुत सारा फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस में ले रहा हूँ एक कॉलम, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इसका ओपन प्राइस कितना था, राइट,
इसका हाई प्राइस कितना था, इसका लो प्राइस कितना था, ये क्लोज कितने पे हुआ। तो ये मैं यहाँ पे स्टॉक क्लोज प्राइस में यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स से क्लोज प्राइस। फिर इसमें वॉल्यूम कितना था, राइट, डिलीवरी कितना हुआ। सो ऑल दिस डिफरेंट पैरामीटर्स आ गए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकता हूँ, बट जरूरी नहीं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से परफेक्ट आएगा, राइट। तो इसके लिए मुझे कुछ दूसरा एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा जिससे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी आए और ज़्यादा प्रॉपर वे में आए। बट यहाँ पे मैं लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन ऑल दिस डिफरेंट, बिकॉज मेरे को एक प्राइस प्रेडिक्ट करना है, एक नंबर प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन ऑल दिस डेटा, कि आज मेरा स्टॉक का प्राइस, मतलब अगर समझ लो ये सब डेटा अवेलेबल है मेरे पास, तो मेरा स्टॉक का प्राइस कितने पे क्लोज होगा। ओके, आई एम देयर, राइट। Yes, sir. Yeah. तो अगर आप लोगों ने ये मॉडल बना लिया, राइट, स्टॉक का प्राइस कितने पे क्लोज होगा, तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागने लगेगी, बराबर, और आपको कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है। तो सब लोग आएंगे आपके पास में, क्योंकि आपको तो पता है प्राइस कितने पे क्लोज होने वाला है। तो आई मीन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे बेटर आदमी पर्सन कोई होगा Sir, I नहीं, missed कोई that. क्या Sir, सर? I missed the starting part of this talk. यू मिस्ड, राइट, स्टार्टिंग पार्ट। सर ये तो भगवान को भी नहीं पता कि स्टॉक की प्राइस कहाँ बंद होगी। देखो बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, और वो आई मीन वो तो करते ही डिपेंडिंग ऑन दी चार्ट्स एंड ऑल, राइट। तो बहुत सारे लोग एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, एल्गोरिथम कितने सारे हैं अवेलेबल, राइट। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग भी अगर कुछ एल्गोरिथम की बेसिस पे और कुछ फैक्टर्स आपके साइड से आप इंक्लूड करके, अगर अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा एक्यूरेसी 60%, 40% भी है, लेट्स से 60%, 50% के भी पास में आ रहा हूँ मैं एक्यूरेसी में, तो भी मेरा प्रॉफिट मैं कर सकता हूँ उसके अंदर, राइट। राइट। तो ये डिपेंड करता है। ओके, It's तो called चलो, algo trading, right? It's called algo trading. अल्गो ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? देखो, अल्गो ट्रेडिंग में मतलब क्या होता है कि समझ लो कि मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना के मैंने छोड़ दिया, राइट। अब वो सॉफ्टवेयर मेरे लिए क्या करेगा, डिपेंडिंग ऑन जो भी मैंने उसको ट्रेनिंग दे के रखा है, कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल एनालिसिस करके मैंने उसमें कुछ ट्रेनिंग दे के रखा होगा। तो लेट से मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अभी मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए था बट अभी आपने पूछ दिया, तो फॉर एग्जांपल लेट से मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया कि मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 के ऊपर अगर जा रहा है, राइट, डे में या फिर आवरली बेसिस पे, तो वो स्टॉक में मेरे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मैंने सिंपल से एक एग्जांपल दे दिया था। अब मैं क्या करूंगा, अल्गो अल्गो ट्रेडिंग से अगर हो रहा है, तो अब मेरे लिए सॉफ्टवेयर वो काम करेगा, बाई करेगा वो, और ओके, और वो सेल भी खुद ही करेगा, मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो मैंने क्वांटिटी डाल के छोड़ दिया, जब भी 20 के ऊपर मूविंग के ऊपर एवरेज के ऊपर जाएगा वो अपने आप बाई कर लेगा। और जब भी एक एग्जिट क्राइटेरिया मैं उस पर स्पेसिफाई करके रखूंगा, लेट से 5% ऊपर गया है, 2% ऊपर गया, तो मेरा वो अपने आप एग्जिट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे एल्गोरिथम हमारे लिए करेगा, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं। तो अगर हम लोग ने एक बार फिट करके रख दिया तो अपने आप वो सब करेगा। क्लियर, समझ में आया आपको? तो ये एल्गोरिथम ट्रेडिंग हो गया। Correct, but that inputs are given by this algorithm, what we set into our analysis, right? So the software is basically designed, yeah, the software only is designed based on certain analysis, right? So वो एनालिसिस करके एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो उसके बेसिस पे हो, और वो उसके अंदर पहले से उन लोग ये करके रखते बैक टेस्टिंग, राइट। अगर यही सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम लोग लाइव में टेस्ट करेंगे तो गेम हो जाएगा सबका, बराबर। तो ये तो टेस्टिंग, हाँ, ये टेस्टिंग कभी भी पहले बैक टेस्टिंग, बैक डेटा पे टेस्टिंग करके देखा जाता कि अगर ये सॉफ्टवेयर होता था तो ये कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे पाता था। फिर उसके बाद में लाइव में भी करके देखते हैं, बट वो पैसे पे नहीं है नॉर्मली, आई मीन पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से वैसे करके। Right, paper trading. ये सब होने के बाद में फिर वो बोल सकते हैं कि हाँ मेरा वर्क कर रहा है, राइट। तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर। तो अल्गो ट्रेडिंग में इतना याद रखो कि मशीन मेरे लिए कर रहा है, मेरे जगह पे मैं खुद से बटन दबाने की जगह पे मशीन कर रहा है सब, मैं खुद नहीं कर रहा। तो उसमें एक फायदा क्या होता है कि जो अपना इमोशंस है, फॉर एग्जाम्पल देखो, हम अगर हम लोग इंसान है, राइट। अगर हम लोग ने कोई स्टॉक बाई किया, उसके अंदर अगर हम लोग ने 50 के इन्वेस्ट कर दिया एक लेट से 400 प्राइस पे, अब वो स्टॉक ऊपर जाने लगा, लेट से 410 हो गया, तो अपने को क्या लगता है, अरे और इधर से 430 चला जाएगा तो और प्रॉफिट होगा, राइट। तो एक इमोशन जुड़ जाता है।
अगर वो 410 पे गया, 410 से लेट से 405 पे वापस आ गया, तो हम लोग क्या सोचेंगे, जल्दी से इसको सेल करो वरना ये तो लेके जाएगा अपना पैसा, राइट। तो ये अपने पास इमोशंस इसके अंदर आ गया। तो ये अल्गो के पास नहीं होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसके पास ये सब इमोशंस नहीं होता। हम लोग ने जो एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया दे दिया वो उसके हिसाब से वर्क करेगा, उसके पास तो कुछ इमोशंस है नहीं, राइट। तो ये बेनिफिट होता है वहाँ पे, उसमें इमोशंस नहीं होता। और हम लोग का जो ट्रेडिंग है उसके अंदर ट्रेडर्स का साइकोलॉजी होता है, वहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व होता है। ओके, तो डिसीजन लेने में वो हेल्प करता है, या ओके। सो लेट्स गो टू आर स्टूडियो, right? All of you are having our salary underscore data.csv file, right? Yes, sir. Yeah. Yes. तो देखो यहाँ पे मेरे पास भी है salary underscore data.csv फाइल। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको रीड कर लेते हैं बिकॉज इट्स .csv फाइल है। तो लेट्स रीड दिस। आई एम राइटिंग डेटा एंड रीड .csv। अगर ये फाइल को आप ओपन करके देखोगे, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये फाइल ओपन करके इसमें 2 कॉलम्स होगा, सॉरी, दो कॉलम्स है। सीएसवी फाइल है मतलब क्या, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, राइट। तो दो कॉलम का वैल्यू जो कॉमा से सेपरेटेड है, तो बीच में कॉमा है। तो फर्स्ट वाला कॉलम है वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सेकंड कॉलम इज व्हाट, सैलरी, राइट। फर्स्ट कॉलम इज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सेकंड कॉलम इज सैलरी। Now, for example, here 1.1 the salary is this much, 1.3 the salary is this much. Like this, we are having how many data? Let's say 31 we are having the data. So the first column is header only. So we are having 30 rows. Okay, 30 rows of data we are having for this data set. Now this is very less data set. Okay, for this small data set we cannot have a proper model, but for the example purpose, I have taken this particular data set, right? So this is our salary underscore data.csv. So first task we will do, that is what we will going to read this. I think this file was there. Yeah, read.csv, and I'll mention the name salary. And you mention the name proper dot data salary data.csv. I'll execute this. So it has executed. Let's try to view the view command data. So let's check whether it has come properly or not. Okay, so we got this thing. Now you know that so many things will be there, right? अगर कुछ मिसिंग डेटा है, कुछ क्या है वहाँ पे, आउटलायर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगे जो वी विल हैव टू मैनेज। बट मैं ये वाले एग्जांपल में तो आज के दिन पे मैं सिंपली आप लोग को सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए फोकस करवाना चाहता हूँ, बिकॉज बाकी सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, राइट। तो फ्यूचर में कुछ भी होगा, जो क्लीनिंग का पार्ट है, जो प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, ऑल दोज थिंग्स आफ्टर डूइंग देन वी कैन प्रोसीड विद द मॉडल। ओके, सो here we have read the data and we got this particular data. Now if you want, we can check the data dimension of the data. So we can say dim of data, it's taking time. Okay, so it has given me that there are 30 rows and 2 columns are there, 30 rows and 2 columns are there. Okay, so like this we can find out the dimension of our data set. Why dimension is required? Dimension is required, for example, suppose I am having, let me run this. Suppose I am having this data set, so I'll have to decide that how much data should I take for the training purpose and how much data I should take for the testing purpose. So normally your 80% of the data is used for training purpose and 20% of the data is used for testing purpose, right? Because after training, when model is ready, then we have to feed the testing data also, so that we can verify that we can validate our model, that the model which we have designed, that is proper or not. So that can be based on the testing data. So we can always divide from our data set, right? If we are having one data set, then from that data set we can take 80% of the data for the training purpose and 20% of the data for the testing purpose, or you can also take 75% for the training and 25% for the testing purpose, right?
So now we have the dimension. We know that there are 30 rows and 2 columns are there. If you want to see the names of your data, we are having names of the column. Then you can see over here by the names command, that is years of experience and the salary. Now what we will do, we will going to split our data. So we will going to split our data set into 2 parts. That is, let me write that. All of you are there, right? I am connected. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, still somebody wants to join. Okay. Yeah. So now I will going to split my data into training set and testing set. Training set and testing set. So you have sent this salary data in the email, sir? Salary data I have not Yes. emailed. You want email? Better, sir. Acha. Possible? Sorry, sir. Yeah, no issue. You can give me your email ID in the. Yeah, I'm just texting now in the message box. Yeah, please give me, then I can forward. Just the CSV alone, if you download, it's enough, sir. Yeah, CSV you need to keep there in your current working directory, where you are working, right? In that particular Okay, sir. folder. Yeah. Okay, sir. I have mailed, I have sent the message. Yeah. I'll just forward you, and which. Yeah, so I think this is the mail. Sorry to interrupt, sir. No issue. Initially, I joined Anybody else slightly. want? Yeah. Anybody else want? No, so I'll forward to you. Yes, so could you please forward to me, please? So My email address is along with that, lots of code is also there, which I'll be covering. So this I'll be putting in the Google Classroom at the end. Okay. Who wanted? I mean, your ID? so it's isha.mithra. Can you put in the? Yeah. Yes, sir. Sir, even I have put my ID. Okay. You just put over there. Sir, meanwhile, one question here. Yeah, please. Sir, you have sent these CSV files and all these things, but last time, if you remember that when I opened in my documents in C directory, C portion, so that was giving error. Now I have moved it to the D direction. So every time when I'm trying to read this data, I need to give the path. Yes. Yeah, you will have to give the path, right? Yes, sir. Every time. But पाथ तो why देना ही पड़ेगा can ना. I do हाँ, it permanently? परमानेंटली आप कर सकते हो. तो जो फोल्डर में आप रख रहे हो उसको वर्किंग डायरेक्टरी सेट करो पहले. So are we supposed to download all the files, sir? No, only CSV file. All the files I'll keep in Google Classroom. Don't worry about that. Okay, other 4 files no need to download now. No, not Thank because you. I'll be covering anyhow. I mean, those files I'll be covering. Okay. Okay. Yeah. It's best I'll mail only those. I hope I have covered all. Okay, so let's start now.
Yeah. So I was telling that we have to split the data set into two parts. That is the testing part and the training part. And the training part, you can keep your data set like somewhat between 75%, 70%, or let's say 80%, right? And here I'll be doing what 80% training set and the 20%, let's say, for the testing purpose. So what I can do, I can write over here, create a variable train, let's say set, okay, training set, a train, yeah, okay, training set, let's say training data. And what we can do, data. So we, So to, we sorry have, to interrupt, sir. So to set the working directory, we have to click on the files, sir, on the quadrant on the right side down. you Files, are plot, working where, on the software or cloud? on the software, not the cloud. Okay. So if you see here in the right corner, right in the fourth quadrant, 3 dots are Aye. there. You click on that, Yeah. click on that, then this dialog box will appear, right? Okay. Then from here you can select the folder, जो भी folder को working directory if you want to set, you can select that particular folder. You can browse. Yeah, got it. Wherever you have downloaded the files. Got it, sir. Thank you, sir. उसके बाद में what you will have to do, you will have to click this gear icon. यहाँ पे this gear icon is there, more, right? Which one, sir? This gear icon is there in that quadrant only. This more is there. Can you see? You There's click a on word this. more written over there. More is Yeah, written more over is there. there. Yeah, more is there. So after clicking on this, you can click over here, set as working Okay. directory. Done, Okay. sir. Set as working directory. Done, sir. Set is working directory. Yeah. Then it will be set. Thank you, sir. Clear? Okay. So I have entire data in my this data variable. Here what I'll say, I'll go to slide. So I'll say 1 to 24. Okay. So I want 1 से लेके 24 rows तक all the data. Okay. So 24 तक I have taken in the training data, and then remaining part I'll take in the testing data. So I'll say test data. Here I'll say what 25 to, let's say, 30. Okay, all the data from 25 to 30. So this data I kept for testing purpose, and this data I kept for training purpose. So let's run this. Test data. If you want, you can view also. Yeah. If you want to view. So within the square brackets, it is 1:24, comma, sir. 1 is to, yeah. Incorrect number of dimensions it is telling. Error in data 1:24, comma, incorrect number of dimensions. Incorrect number of dimensions, it should not help. The format is showing up. Data in square bracket. Yeah, square bracket. I'll copy and paste it in there. Have you put Can you comma after that 24? Yeah. Check your data before that. Do a view on your data and see. I have set it as a working directory only. No, just run the view command. View comma in brackets data. Just check whether you could read the data or not first. Okay. Yeah. Just view your data first. So I fired this view on train data. Okay, if you fire this view on train data, you can see because we mentioned कितीला आहे माहिती नाही 3.5 वगैरेला होईल पण असं. we have mentioned this. So if you see the train data, it's there up to 24, right? From 1 to 24, we got this our train data. So we have sliced our data into training set and testing set. So this one task is done. Then after this, what we can do, right? Now we can train, right, by using this training data, and we can make the regression model. So I'll write over here.
It is saved Same as thing. salary underscore data, sir. File name salary underscore data. Salary underscore data dot CSV. Yeah. Whether you could read that file? No, it's giving error. That's why I'm saving it again in the working directory. Salary is got capital S and data has got capital D. Just check it out. Probably that file must be giving it. Sir, I posted my error which is coming for me in data chat box. Just check it, sir. First, execute these two commands, okay, and just check whether you could read the data and view the data or not. I'm able to do it, sir. Both I'm able to view that and am I able to read the data also, sir? Okay. This type of closure is not subsettable, is sir. So when you view the data, what you are getting, I mean? Sir, show me your screen. Do that. Yeah, please share your screen so that everybody can understand, I mean. Just a minute. Sir, same here. Train data not found. Training data not found. Yes, sir. Even I can see the data which I have created. Means. So whether you run that, after that you have to run these two. You try to run train data first, execute it. Yes, sir. Any error you got in this? No. Then you must see train data. Yes, sir. Yes, sir. I can see now. If you have not got error, you should be able to see. Yeah. Yes, sir. Now I think my screen got shared. It is, sir. Okay. You have Which directly is run it? train. No, you have not defined data. Hello, you have not defined Yes, data. yes. See, You have variable to is different. do. Your salary, you have taken the salary variable in place of that You have salary. taken the name as salary. You have to, Yeah. wherever sir has written data, you have to write salary. Okay. So I have to put it salary over there. Yes, Yes, that's why yes. it's showing that that variable is not there. I mean. Okay. Now hit enter. No, they replace data with salary, not the train data. Arena. What I can get you. No, replace data. Okay. Yeah. Trains. You reverse everything. Okay. Okay. Anyway. No, instead of salary, you put this test data, train data. See. Sorry. Instead of salary, put train data. Okay. Yeah. Put train data. And instead of salary, yeah, that is okay, fine. Now I put hit enter. Yeah. Okay, I get it. Okay. Your Okay, data thank you. is salary and search data set is data. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Type test data now. So see now, I mean, so many kinds of errors keeps on coming, right? Whenever we do the practice, but if we'll do properly and 1 or 2 times we'll practice, definitely we'll be able to do. Okay. So we got the data now. Now we have to create what? You need to reshare the screen. So share a okay. screen. Whether my screen is visible now? Yes, sir. Yes. Okay. So now I am creating one variable that is, let's say, LM model. Okay. So this is called a linear model, LM model, let's say. And to this particular model, I'll train my model by using the linear model function, which is available already, right? So with the LM, we can say here the salary means what? Your the independent variable, right? I mean your salary which we have to predict depending on the year of experience, right? So we have to write
in this particular fashion, salary, then tilde sign is there. So if you can see shift, if you can press shift and this particular tilde sign on your keyboard, beside that one numeric key, there will be, I mean, Tilde. yeah, tilde is there, right? Can you see below escape button? There might be one key, right? Escape, below escape button. Yes, sir. Yeah. Yeah. So In the top left. that tilde I'm talking about. So here I'm writing years of years experience, right? You need to write properly, okay? Spelling mistake will be there, then it will not come. So I'm saying salary versus years of experience, right? Salary with respect to years of experience. And here then we don't have that dollar option that will pick up the field list. see, I'm not doing with the data set, right? I'm talking about two columns, clear? And then data set we can mention separately in the separate parameter. So right now I'll be mentioning data is equal to, from where we have to pick. So this will be doing on what? Training data, right? Just now we have separated train data and test data, right? So this we are doing on the training data. So I'm mentioning my data set will be what? Train data. Is this clear what I've written over here? I have used very simple linear model function, LM function, and I'm here talking about salary with respect to years of experience, right? And data which I'm mentioning, my data set is what? Train data. So on my train data, I'll be training with the help of this linear model. So let's try to train this. Okay. So if everything is proper, it will not give you any error, right? And we have trained this particular model. Now we can check the summary of our model, but before that, let me print this LM model itself. If you try to print LM model, right, what you are seeing over here, that देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, right? Intercept दिख रहा है और years of experience दिख रहा है, right? One second, sir, I'm getting error. Yes, sir. Yes, sir. Errors क्या है? कुछ Error spelling object LM model not found. LM model not found ऐसा आ रहा है error? Yes. Is there some package we have to load? So for this one, I don't think a package will be there. Let me check. सबको आ गया ना, मतलब किस और तो नहीं, sorry, sir, I came to know. हाँ sir. So sorry to interrupt. Yes, sir. It is coming. One second. Sir, You I train left data a space. I'm not getting, sir. I left a space between LM model and that left bracket. That is why. Okay. So I'm not But getting got view that now. train data itself. I'm not getting, sir. Actually, in the working directory, I have salary underscore data.csv file. Is there any other file to view the train data left out? No, only that file is only required. That is there in the working directory. But when I put view train data, I'm getting object train data not found. So You are train not data creating variable object. is not, yeah. Capital D. Huh? Capital D. Yeah, capital D only I put. Train T capital, data D capital. But have you view- defined that variable? You have to define that variable with that thing which is on sir's screen right now. Train data greater than, less than hyphen data 1:24. Has that command run properly of yours? read CSV open bracket within colon that one, right? Not that one. Train data down below So these splitting of two data. variables, please create these two variables. See, Before एक that बार is, data. view data itself I'm not getting. No, you will not get unless and until you will do these things, these two No things. sir, on top that ऊपर का जो salary CSV है ना उसका अच्छा, नीचे this जो one. view data, हाँ वही View नहीं data, मिल this रहा you है. are not getting. Now I have run that one. Now I'll view data down. No. Now Yeah, I now get I'm it. getting. Yeah. Now you are getting? Yes, sir. Okay. Sorry, sir. Sorry to interrupt. No, it's okay.
I mean, see, if a little bit mistake here and there, it will be there, then you will not get, right? Yeah. Okay. Yeah, so I was talking about this one LM model, and by using this LM function, we trained our data, right? And I told you that when once we'll be doing this thing, once we'll be doing the linear regression, so it will try to draw a best fit line, right? And depending on that, it will try to find out the intercept and the slope of the line. Now, if I fire summary command on this, I've pasted that entire thing. Just if anybody is still lagging behind, they can copy from there. yeah, please do it, because see, we have to do after this, we have to do the entire visualization also, and that is very interesting part. Okay, so now if I have fired the summary command on this LM model, so there will be a lot of things, but I'll discuss. Sir, can you please mute everyone? See, on this I won't be able to do Google Meet. Yeah. Okay, so please, from your side, you all of you, please mute, so that I mean no disturbance should be there. Sir, what is that coefficient? Yeah, I'm coming there. Okay. So coefficient means what? Coefficient means those two coefficient, like our one coefficient is the intercept and second is what? Your slope, right? So those two values are called as what? Coefficient. Yeah. So now if you see here, the intercept is given and this years of experience value is given over there, right? So these two are called as what? Coefficient values. One thing which is to be noticed here, this is multiple r squared value, and second thing, you can check this one, residual standard error. This one, residual standard error. So one thing I wanted to tell to yes, others, I was keying the same thing what Mr. Kenneth has done, but since he has pasted in the text, thanks to him, I pasted it. Now it is working fine. I don't know what is the magic. Same textual I have also scripted, but somehow whatever he has textured, train data, test data, view, that I copy pasted, it is now working. It's working now. It's working now. Yeah, but because it has worked on my laptop, so it will work for you also. I don't know what you must have missed a space or something somewhere. Fine. Yeah. Okay, that's fine. Just wanted to tell. Okay, let's go ahead. Yeah, please. Yeah. Okay. So this multiple r square values, it's showing 0.9179. तो ये जितना ज़्यादा होगा, for example, see 0.91 है मतलब 91%. तो अपना जो एक्यूरेसी ये समझ लो 91% है. तो ये जितना 1 के पास में होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट अपना मॉडल. And if it's near 0 side, then it's not acceptable, right? I mean, it's not a proper model. तो एक्यूरेसी अपना कम से कम 70-80%, आई मीन वो साइड में रहना चाहिए, देन वी कैन से दैट या वी कैन एक्सेप्ट. तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, to improve our these r square values, right? For example, now in this particular data there was no outliers and there were no missing values and all those stuffs were there, but during training, I mean, if we are getting very less r square values, then what we can do, we can remove some of the outliers, we can do some processing in a different way, and then we can again run the model and we can again check whether what is our multiple r square values, right? So that we can always check. And if you'll see that time, like for here now it's 91, right? And residual error is 6189. So once you'll try to modify, you may check that the residual error in every improvement stage, it will going to reduce, okay? And this will going to improve. Anyway, this is a shortcut which I'm telling you, that you can focus on this particular stuff whenever you are training the linear regression model. So you can always look for these values, multiple r square and adjusted r square values, right? You can later on check. So give me show the syntax, no? Yeah. So here is one query is there. Yeah.
Sir, here we have taken the data that is under training is a 1 to 24, and then after that we have taken the testing data. Okay. So our R square value is something different. If suppose we take the first few as a testing and after that 75% as a training part, so it will be effect on the R square value also. नहीं नहीं, वो जो टेस्टिंग वाला डेटा है ना वो ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं करेंगे, बराबर? नहीं तो हम कैटेगराइज कैसे करेंगे कि वो ट्रेनिंग किसको लेना है? सपोज अभी हमने 1 to 24 ट्रेनिंग डेटा लिया, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, बराबर? अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ गए आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया। हम मान लीजिए लास्ट से 24 लेते हैं, चलेगा, कोई इशू नहीं है, आप लास्ट से लो। ऑब्वियसली आपका आर वैल्यू तो कम ज्यादा होगा, समझ में आया क्या? यस 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 यस, वो तो इधर उधर चेंजेस होगा ही, राइट? तो हम लोग को तो जब भी प्रोसेसिंग करेंगे उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, वो सब फैक्टर्स रिमूव करके हम लोग जब भी ट्राई करेंगे तो अपना मॉडल और इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं वो बता रहा था। ओके, हाँ, अच्छा। So what is the code for LM model? Linear model, it's a linear model. Okay, so for this linear regression we use this linear model. Okay, hello, understood? Yes sir. Yeah. Okay, now sir, what is that adjusted R squared? So if you know the R square value, then you can understand this R squared value, and R square values only you will come to know once you know the R value, right? So it's like we have R value, we have R square value, we have adjusted R square value. Clear? Later on you can search on the net, but if I want to tell you that R value is also called as Karl Pearson coefficient. Okay, let me. We have the Karl Pearson coefficient, right? R value. So this is for correlation purpose. Okay, correlation purpose. Since you have asked correlation, so this correlation, these values will be from -1 to 1. Okay, -1 to 1, right? Now, if I have the data, if I have model, and then whether my model is positively correlated or negatively correlated, I can tell based on that. For example, let's say I'm having the data sets like this, right? This is my X, this is my Y. I can draw a base fit line like this. Now I know there is a negative correlation. Okay, correlation मतलब दोनों के बीच में क्या relation है? Understood? What is the correlation between both these two variables? So here I can say there is a negative correlation. If I have the data in this way, if I draw a base fit line, this is my positive correlation, right? Now positive correlation may be if the value is 1 directly, then I can say it's a perfect positive correlation. It's a perfect or complete positive correlation. Similarly, if the value is exactly -1, then we can say a perfect negative correlation, right? Perfect negative correlation. अगर zero है, अगर zero value या zero के पास में, तो we can say there is no correlation. There is no correlation between both the variables. Clear? तो अगर मेरे पास में मल्टीपल फैक्टर्स है और मेरे को निकालना है सैलरी, और मेरे पास मल्टीपल फैक्टर्स अवेलेबल है यहाँ पे, लेट्स से 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है। सबसे पहले मेरे को तो ये भी तो समझना पड़ेगा कि ये सैलरी सच में डिपेंडेंट है क्या किसी, समझ लो ये फोर्थ वाला जो कॉलम है, मैंने ऐसे ही उठा के कॉलम ले लिया, अब ये सैलरी मेरा इसका कुछ लेना देना नहीं है फोर्थ वाले कॉलम से, बट इसको मैं अननेसेसरी इंक्लूड करके और इसको भी साथ में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसका तो कुछ मतलब नहीं है। क्लियर? तो whether I am there, all of you can hear me? Yeah. Yes. Yes, sir. Yes. So we can always find out the correlation between the salary and the factors which are available over there. If they are highly correlated, then we can take those columns, right? Because वो columns लेंगे तभी कुछ फर्क पड़ने वाला अपना प्रेडिक्शन पे, अदरवाइज जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है, ये नॉर्थ में जा रहा है और ये साउथ में जा रहा है, राइट? मतलब ये दोनों का कुछ लेना देना नहीं इससे, तो फिर मैं ये कॉलम को लूँ क्यों ट्रेनिंग के लिए? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया सबको? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ?
मैं अगर कोई मॉडल मैं कोई मॉडल अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स, राइट, अभी तो मैं मॉडल में सिर्फ एक ही कॉलम दिया, बट मेरे पास अगर मल्टीपल कॉलम्स है, किसी ने मुझे दे दिया 10 कॉलम्स, राइट, सबसे पहले तो मेरे को यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो मेरा आउटपुट वेरिएबल है वो सच में ये सबसे किसी से रिलेटेड है कि नहीं, को रिलेटेड है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट चेक कर सकते हैं। ओके, वो निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो को रिलेशन रहना चाहिए, 0 के पास में नहीं रहना चाहिए। तो वो वाला अगर 0 के पास में तो वो वाला कॉलम में ड्रॉप कर सकता हूँ। तो 10 में से 1 उड़ गया, 9 ही बचा मेरे पास, राइट। फिर और बाकी सबसे मैं चेक करूंगा। ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये जो सेकेंड वाला कॉलम है, राइट, ये सेकेंड वाला कॉलम है, इससे मेरा कोरिलेशन है लेट से 0.95, राइट, कोरिलेशन। और जो थर्ड वाला इससे भी 0.95 है, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम है या आसपास चल रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों को मैं क्यों खाली फोकट अननेसेसरी मैं ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ। इसमें से कोई भी एक कॉलम भी ले लूँ तो भी देन ऑल्सो इट विल डू, राइट। तो अननेसेसरी मैं 2-3 कॉलम्स को ले रहा हूँ, जबकि मैं एक कॉलम को लेके भी ट्रेनिंग दूंगा तो भी मेरा वही आउटपुट आने वाला है। और दोनों कॉलम्स को कंसीडर करूंगा, देन ऑल्सो आई विल गेट द सेम आउटपुट. So because both the columns are very highly correlated, right? So even if I'll consider one column and if I'll drop another column, then also my model will not going to be affected, right? So in that way also I can have the filter and I can remove one or two columns, right? In that way, and I can select, for example, 3 are very highly correlated, so I can take one column from there and I can remove those 2 columns, right? So this is always a trial and error thing, and based on certain things we can always check. So correlation will play a big role over there, right, for the feature selection purposes. I mean, other things are also there, like that is called a dimensionality reduction, right, which is done with the help of PCA, principle of component analysis, right, which, I mean, those things are the part of the advanced training and which we have not covered in this particular syllabus, right? But those analysis you can do, principle of component analysis, you can reduce the dimensions of your entire data set. Reducing dimensionality of your data set means reducing some of the column, right? So this is one factor I have given, that is based on the correlation factor. First thing, if there is no correlation at all, there is no point to consider that particular column. Second thing, if there are very highly correlation between 2-3 columns, then you can easily drop 1 or 2 columns, so you can select only one column among from that set of the columns. Whether this point is clear? Yes, sir. Okay. Yes. Yeah. So this, Yes, sir. based on this R value, what we do, we just square it, we get the R square value, right? So if R square value is like 90.91, so R square value will be from 0 to 1. Okay. So agar 1 ke paas mein, for example, so we can say 91% of the accuracy we are achieving. 91% is our accurate model, right? We can say based on this R square value. और एडजस्टेड आर स्क्वायर एक फॉर्मूले से एडजस्टेड आर स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर में से निकालते हैं, राइट? सिमिलरली हम लोग के पास एब्सोल्यूट आर स्क्वायर भी होता है। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज है जो आप चेक कर सकते हो। सिर्फ आर वैल्यूज नहीं, और दूसरे वैल्यूज भी आपको मिल जाएंगे, राइट? तो ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, बट आप हमेशा इस पे ध्यान रख सकते हो आर स्क्वायर वैल्यू पे। अगर ये ज़्यादा है मतलब आपका मॉडल अच्छा है, एक तरह से ये बोल सकते हो, और ये रेसिडुअल एरर्स आपका ये कम होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. So can you explain again this adjusted R squares? So adjusted R square value is dependent on your R square value, ठीक है? और R square value आपका जो डिपेंडेंट है वो R वाले वैल्यू पे डिपेंडेंट है। R वैल्यू हम लोग की The software automatically adjusts and it projects it there, or we have to no. We have the formula for adjusted R square also. Okay, आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? ये आर स्क्वायर भी ऐसे ही नहीं आता, ये जब आर वैल्यू भी ऐसे नहीं आता। पहले तो हम लोग को आर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आर कैलकुलेट करने के लिए अभी मैं वो सम नहीं ले रहा, अदरवाइज हम लोग एक सम कर सकते थे और बेस्ड ऑन दैट उसके ऊपर आर कैलकुलेट कर सकते थे। तो आप कभी भी गूगल में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट आर जब भी फायर करोगे तो आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। मतलब आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा, डेविएशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद में सम करके आपको वो कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, तो आपको एंड में आर मिलेगा। तो उसका एक फार्मूला है, राइट, करने के लिए। तो यहाँ पे तो सब अपने को रेडीमेड मिल जाता है, अपने को सिर्फ कमांड फायर करना है एंड देन वी कैन गेट द वैल्यूज, राइट? बट अगर रियलिटी just a summary command will fire you'll get it. yes, summary yes. LM model. yes
और So internally you have the formula loaded and it just yes, project yes, R squared and yes, yes, adjusted R. यस यस अदरवाइज आप कभी बाद में जब भी आपके पास टाइम होगा तो आप देखना हाउ टू कैलकुलेट आर वैल्यू एंड आर स्क्वायर, तो आपको एक सम आ जाएगा उसके ऊपर। जैसे आपके पास एक्स और वाई सम डेटा दिया रहेगा तो आप उसके बीच में फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो कि एक टारगेट वेरिएबल और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो आप उसके बीच में कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो जब आप कैरी आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ कैल्सियम और यू विल गेट द वैल्यूज, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट आर वैल्यू यू कैन टेल दैट दिस इज there will be negative correlation or there will be positive correlation or where there is no correlation at all. So based on that R value you will be able to see say. तो R वैल्यू एक बार आ गया तो उसके ऊपर फिर R स्क्वायर डिपेंडेंट है, फिर आप एडजस्टेड R स्क्वायर भी निकाल सकते हो, आप एब्सोल्यूट R वैल्यू भी निकाल सकते हो, राइट? तो मल्टीपल वैल्यूज वहां से डिराइव होता है। ओके या तो फिर जब भी टाइम मिले आप लोग एक बार गूगल कर लेना और आपको फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से आ जाएगा। बट मैं अभी के लिए आपको ये बता देता हूँ कि अगर आर स्क्वायर वैल्यूज मेरा ज़्यादा है मतलब मेरा मॉडल ज़्यादा है, एक्यूरेसी मेरे पास ज़्यादा है। ओके और या तो ये आप कभी भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेनिंग दिया मेरा मॉडल का और मेरा समझ लो 75% एक्यूरेसी आया, जाके मैं डेटा सेट चेक करूंगा मेरा डेटा सेट है कैसा, क्यों मेरे को 75% आ रहा है। और ऐसा तो नहीं मैंने कोई कॉलम सिलेक्ट किया है जिसको अननेसेसरी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, राइट? या फिर अननेसेसरी मैंने 2-3 कॉलम एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लिया है जिनका कोरिलेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद में और मिसिंग वैल्यूज प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करने के बाद में, आउटलायर्स रिमूव करने के बाद में, सब प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर से मैं ट्रेनिंग करूंगा, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग करने के पहले ही ये सब कर लूंगा और ट्रेनिंग करने के बाद में वापस मैं डेटा सेट को विजिट करूंगा, कुछ और मैं कर सकता हूँ क्या, राइट? ये सब करने के बाद में जब फिर से आप ट्रेन करोगे और जैसा बीच में एक क्वेश्चन भी किसी ने पूछा कि अगर मैं नीचे से डेटा सेट सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन रहता है, मैं रैंडमली भी डेटा सेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? जरूरी नहीं मैं 1 से लेके 24 सिलेक्ट करूँ, मैं रैंडमली बीच का 2 रोज निकालूं, कहीं से 5 रोज निकालूं, ऐसे भी करके मैं डेटा सेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? तो मल्टीपल वेज रह सकते हैं वहां पे एंड देन आई कैन चेक मेरा एक्यूरेसी किस में ज्यादा आ रहा है। क्लियर? Okay. And is there any relation of the name of the software RStudio? It's because of this significance? नहीं That is no. different. Yeah. Okay. सर वन क्वेरी, तो अभी हमने ट्रेनिंग से डेटा निकाला था, ठीक है, आर स्क्वायर निकाला, देन व्हाट इज द यूज ऑफ टेस्टिंग? बता रहा हूँ मैं, अभी तो आ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है? अपना ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया अपना, ठीक है? अभी हम लोग टेस्टिंग पे आए हैं। ओके सर। देखो ट्रेनिंग के लिए हम लोग ने डेटा निकाल लिया जिससे अपना मॉडल ट्रेन करके हम लोग मॉडल बना लिया। अब टेस्टिंग डेटा हम लोग लेंगे, जैसे टेस्टिंग डेटा में भी अपने पास क्या रहेगा, टेस्टिंग डेटा में भी अपने पास यही 2 कॉलम रहेगा, सिर्फ फर्क इतना है कि उसके अंदर 5 डेटा बचा, मेरे पास 6 डेटा बचा, राइट? 24 हम लोग ने यूज कर लिया, तो मेरे पास यही डेटा है, मेरे पास एक्सपीरियंस और सैलरी है। तो टेस्टिंग डेटा में से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेस्टिंग का डेटा उठाएंगे, एक्सपीरियंस डालेंगे और देखेंगे अपना मॉडल सैलरी कितना बता रहा है। तो जितना सैलरी बता रहा है थोड़ा डिफरेंसेस होगा क्योंकि हम लोग ने ये ट्रेंड मॉडल बनाया, तो जो भी वैल्यूज हम लोग एक्सपीरियंस का देंगे इधर से ट्रेनिंग टेस्टिंग का उठा के, वो अपने को एक सैलरी बताएगा जो थोड़ा सा डेविएशन होगा इधर से, राइट? बट वो तो मॉडल बनाया ऑब्वियसली सेम टू सेम तो आएगा नहीं, राइट? बट एक्यूरेसी हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ आसपास वैल्यूज आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ अपना मॉडल ठीक ठाक है, बता रहा है वैल्यूज प्रॉपरली। क्लियर? उसके लिए टेस्टिंग देता है। So let's come over there. So model is there. Now we can move ahead. I'll just move this window down. Yeah. Okay. Now what I'll do. अभी मॉडल तो आ गया, समझ लो मुझे किसी ने बोला कि ठीक है आप कोई एक एक्सपीरियंस ईयर के लिए मुझे बताओ कि उसका सैलरी क्या होगा, तो आई कैन फायर इन दिस वे फॉर एग्जांपल। या फिर मैं क्या करूँगा, वो जो ईयर उसने बोला है, लेट्स से मेरे को 10 ईयर्स के लिए बताना है सैलरी क्या होगा, तो मैं वो 10 ईयर्स का एक मैं पहले डेटा बना लूँगा, उसको बोलता हूँ मैं अननोन डेटा या फिर न्यू डेटा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, न्यू डेटा करके data.frame, I'll have to make the frame, right? And here I am saying that my year of experience is years experience, okay, is equal to 10. Year of experience is 10. ये मेरा न्यू डेटा है जो शायद नहीं होगा मेरे इस ट्रेनिंग डेटा सेट में। लेट मी चेक।
ओके और अगर है तो फिर मैं इंक्रीज कर सकता हूँ इसको, लेट्स से मैं 20 ले लेता हूँ, राइट। तो मैंने एक अननोन डेटा ले लिया, आई रन दिस, मेरा न्यू डेटा बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग। अभी तक मैं टेस्टिंग वाला यूज नहीं कर रहा, राइट। मैंने ऐसे एक मैंने मेरा मॉडल तो बन गया, राइट, ये मॉडल बन गया। अब ये मॉडल के बेस पे एक अननोन डेटा ले लेते हैं और प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं कि इसके लिए वैल्यूज क्या दे रहा है। तो लेट्स ट्राई टू प्रेडिक्ट दी हम लोग का टास्क है प्रेडिक्शन ही है, राइट। तो हम लोग अभी प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, प्रेडिक्ट द टारगेट वेरिएबल फॉर अननोन डेटा। सो लेट्स ट्राई टू प्रेडिक्ट, I'll say predict function, okay, and I'll give the name of my model. The name of my model is what? LM model, right? LM model। और मेरा न्यू डेटा क्या, न्यू डेटा करके एक पैरामीटर है, तो ये इसको ऐसे ही लिखना है, न्यू डेटा इक्वल टू न्यू डेटा। अभी मेरा क्या है, जो हम लोग ने जैसे यहाँ पे जो ये न्यू डेटा बना है, ये एक काम करती है, दोनों का नेम सेम हो जाएगा। तो इसको मैं न्यू डेटा 1 कर देता हूँ, ओके। न्यू डेटा 1 कर दो इसको, इसको वापस से रन कर लो, न्यू डेटा 1। और ये वाला डेटा हम लोग को जस्ट यहाँ पे डाल देना है, राइट। तो मेरा न्यू डेटा इक्वल टू न्यू डेटा 1, इसके लिए मुझे प्रेडिक्ट करना है। सो लेट्स रन दिस टेक्स्ट, नाउ लेट्स चेक। तो इतना सैलरी आ गया, देखो कितना सैलरी बता रहा है, 22,4715 बता रहा है, राइट। तो अभी ये अननोन डेटा, ये तो है नहीं कि मैं इसमें वेरीफाई कर सकूं, बट इसने मेरा मॉडल ने बताया कि अगर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो इतना सैलरी होगा। तो अब ये इतना बता रहा है, लेकिन ये थोड़ी अभी ये बता रहा है, तो हम लोग को आंख बंद करके इस पर भरोसा करने का जरूरत नहीं है, राइट। ये मेरा मॉडल बता रहा है, अपने को चेक भी करना पड़ेगा कि ये मॉडल जो ऑलरेडी नोन वैल्यूज है उसके लिए क्या बता रहा है, हो सकता है उसके लिए भी कुछ भी बताता रहे, राइट। सो इफ it's telling for the known values also, if it's telling any random values, then definitely we will not going to accept this particular model, right. So we have separated our testing data, right. We based on those data we can check, because अपने को already मालूम है, अपने पास टेस्ट डेटा देखो क्या है, we can view that, view नेम क्या मैंने दिया है, लेट्स टेस्ट डेटा, ये टेस्ट डेटा। दिस इज माई टेस्ट डेटा इज देयर, राइट। देखो यहाँ पे 10.5 ईयर्स के लिए सैलरी इतना है, राइट। तो मैंने तो 20 ईयर्स दिया, तो अगर समझ लो इसका डबल भी किए तो ये क्या है, 1,21,000, राइट। और इसका डबल कर दिए लेट से, तो 2.5 लाख के आसपास जाना चाहिए, राइट। और अपने इसके अंदर क्या आ रहा है, 20 साल के लिए उतना ही आ रहा है, राइट। 20 क्या ज़्यादा आ रहा है, 2,24,000 उतना है, ठीक है। आई मीन आ रहा है, समवॉट बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास जो व्यू डेटा है, टेस्ट डेटा है, राइट। ये टेस्ट डेटा अपने पास इतना अवेलेबल है, ये नोन है, अपने को पता है 8.7 के लिए इतना एग्जैक्ट सैलरी, 9 के लिए इतना है, 9.5 के लिए इतना है। तो हम लोग ना ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देंगे इसको, और चेक करेंगे सैलरी कितना बता रहा है अपना मॉडल, ओके, वो चेक कर लेते हैं पहले। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल डू, सर एक इशू है, आई हैव पेस्टेड इट इन चैट। वो न्यू डेटा 1 वाला जो वेरिएबल है ना, व्हेन आई ट्राइड टू रन दैट इट गिव मी एन एरर, नॉन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। Even for me, this pre-DS1, there is an error, sir. I'm not getting that number. एक मिनट आपने ना 20 के पहले कुछ हाइफन दिया क्या, इक्वल टू है वो अच्छा, ओके। मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो डेटा लिया ना, मैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 20 बोल रहा हूँ, राइट। क्योंकि मेरे को 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए मेरे को सैलरी कैलकुलेट करना है, क्लियर। हाँ, तो वो इक्वल टू है, इक्वल टू है, ओके, थैंक यू। हाँ, अभी वो चल गया। I have posted on the message, sir, pre-DS1, that script which I have written is giving error, sir.
It's giving you error. Object but- new data one not found. so you have to run that. I mean, above new data one, whether you have run that. See, we change the this variable line. from new data to new data one. So ये you मैंने have to, चेंज किया है, मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया. ओके, न्यू डेटा वन कर One दिया second, था. sir, one it has to You be run new this line data again. one. Because मैंने इसलिए चेंज किया कि यहाँ पे ऑलरेडी वन पैरामीटर इज देयर, न्यू डेटा, राइट? new data one data frame that coding now. Yeah. First run this one and then run this line. Yeah. Okay. Then I have to run this line. Yeah. No object new data one not found. That line is okay. There is no First error. run the but new this- data one line. Yeah. You Yeah, I run have done that. first this line. That is running. So did you get error for that? That I'm not getting error. Pre DS1, that one I'm getting. Okay, so here what you written here, new data one you written. Yeah, new data one. New data, I posted it in the message box. Want me to post again? You post the above line also. Yes, sir. Same error with me also. Okay. Random it behaves, I think. This line is running for me. This line is running. This line is new data frame is running. Actually, it should run. It should not give any error. I mean, if you can share your screen and in front of us, you can run. Then we can check. Let's do one thing. I'm pasting mine. Okay. Just do copy paste of mine. Copy paste my line and see whether you're getting that error. EDS1 predict LM. Okay, I have also pasted the code. You can run that one also if you want. Yes, sir. Yeah. It should not give any error. Again, object same error. Object new data one not found. New data one not found. That means it should give the error in that line only. Whether that line is running, new data one line is running. That new, New data one. data dot frame years experience, that one, no? No. New data one it should be. Can you show your New data screen? one. Whether it- Oh, okay. Type Yeah, new data one. The variable name is new data one. One second. I'm pasting that also. Just I paste it I and should have- Yeah. I should have taken some other variable name. Yeah, now it's running, sir. No, I missed that one. Okay. Now it's Other coming. person also got error. Let him also put that one. I think you would have missed the one. You got it? Now all of you got? So we can move ahead. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. The issue Vinay, was. you also got? I missed that one. Yes. Actually, Here experience is not found. Error is coming. I kept 20 under the both commas, inverted commas. Acha, yeah. It should be equal to 20. Oh. Okay. Yes, sir. Yes. numbers will never come in quotes. That's a numeric value. Yeah. Any text will come in Yeah. quotes. I got it. Okay. So error is coming in years experience not found, sir. So years experience, write the proper spelling. Years experience. Okay, sir. Okay. Okay. Y is capital and then E is capital. Years experience. You can see the column name. Okay, this is a column name. Years experience. It should be proper. Yes, sir. It came. Yeah. Thank you, sir. I didn't wrote S, sir. Right. Year I can, if this kind of error is, see, object not found अगर error आया, समझ जाना कोई variable create करने में problem हो गया, right? मतलब वो variable है ही नहीं, and then we are trying to access, then it will tell you that object not found.
और या फिर लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं, या फिर लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं किया, देन इट विल गिव यू दैट काइंड ऑफ एरर। एंड अगर ये कॉलम का नेम का मेंशन आ रहा है कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसा सब नहीं है, तो स्पेलिंग चेक कर लेना वहाँ पे। Okay, sir. ओके, Thank you, sir. so now since what I have done, see if I want to summarize, हम लोग के पास डेटा सेट्स था, हम लोग ने डिवाइड कर लिया ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में। फिर ट्रेनिंग सेट को लेके हम लोग ने वो मॉडल ट्रेन कर लिया, मॉडल रेडी भी हो गया अपना, हम लोग ने एक अननोन डेटा भी लिया, उसके लिए चेक भी कर लिया कि सैलरी कितना आ रहा है। लेकिन भरोसा कैसे करें इसके ऊपर, ये जो सैलरी इसने बताया 20 ईयर्स के लिए, वेदर दैट विल बी प्रॉपर और नॉट, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी हैव द टेस्टिंग सेट ऑल्सो, राइट, वेयर वी हैव द नोन वैल्यूज ऑफ for year of experience, we have the known values of salary, right? So we can give that testing set and we can see, we can check कि जो डेटा आ रहा है वो इनलाइन है कि नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग नाउ, so you can go ahead with this one. Let's create data dot frame. I can write, so here this I am creating at the data frame with the by using the same one, threads one, right, and new data, year of experience. If I run this EF1, so I'll get in this way that prediction is I'm just for representation purpose, I've created one data frame where I can show you that prediction one, and the second one will be your year of experience. So if you see over here, the prediction is what, this particular salary, and for the year of experience is this one. So just for the representation purpose, now we can move ahead, and we can take all the testing set, and we can check whether our model is giving or not properly. So I'll just write here, I'll comment that using So prediction, PRED, S for stands for what, sir? Prediction is PRED. What is that S significance? S. Which is? No, PRED S1. That's a variable. Variable. One proper is defined. Yeah, it's a simply variable. I mean, it has no meaning. It's a data set here. One proper is defined. You can take any name, right, over here. Yeah. Right, right. Okay, yeah. So now I'm doing with the testing set. So I'm saying that using test data, right? So this is for what? To check accuracy of the model. Okay, accuracy of the model using test data. Yeah. So this we will going to check the accuracy of the model using test data. Again we'll do, let's say that this will be our prediction 2. So I'm saying threads 2. First was my prediction 1. This is I'm saying prediction 2. I'll do predict function. My model name is what? LM model. So I've written this LM model, and then my new data I'll give. अभी हम लोग ने फर्स्ट केस में क्या किया था, देखो यहाँ पे न्यू डेटा हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था कि न्यू डेटा 1 लिया, राइट। न्यू डेटा 1 क्या था, न्यू डेटा 1 हम लोग ने सिर्फ एक ही लिया, दैट इज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इक्वल टू 20। तो हम लोग ने सिर्फ एक डेटा लिया, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इक्वल टू 20 एज आवर न्यू डेटा लिया। अभी इधर हम लोग क्या करेंगे, न्यू डेटा हम वी आर डूइंग बेस्ड ऑन व्हाट, आवर टेस्ट डेटा। तो हम लोग पूरा का पूरा टेस्ट डेटा इसको दे देंगे। 25 to 30। हाँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेस्ट डेटा जो हम लोग ने सेपरेट आउट किया, तो पूरा यहाँ पे टेस्ट डेटा हम लोग इसको दे देंगे। लेट्स रन दिस। तो ये हम लोग ने रन किया, राइट। इसको अगर आप वैल्यू चेक करोगे थ्रेड्स 2, तो देखो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे 25, 26, 27, ये तो लाइन्स बता रहा है मुझे, और उसका प्रेडिक्शन बता रहा है, राइट। एक मिनट में इसको प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसा इधर हम लोग ने डेटा फ्रेम बनाया वैसा इधर भी डेटा फ्रेम बना के इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स मेक डेटा फ्रेम 2 data dot frame, it's 2
टेस्ट डेटा और इसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेट्स प्रिंट दिस df2। ये देखो हम लोग ने प्रॉपर फॉर्मेट में इसको प्रिंट किया, तो ये मेरा सैलरी है और ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। अभी देखो यहाँ पे 8.7 के लिए कितना बता रहा है, इतना बता रहा है, राइट। 9 पॉइंट के लिए इतना बता रहा है, और एक्चुअली में है कितना, देखो 8.7 के लिए और 9 के लिए। सो यू कैन चेक इन योर टेस्ट डेटा, राइट। 8.7 के लिए देखो यहाँ पे 109431 है, राइट, और ये इधर बता रहा है कितना 1111, राइट। देन 9 के लिए 105582 और ये इधर बता रहा है 114। तो ऑब्वियसली सेम तो नहीं आएगा, बट समवॉट सेम है, राइट, नियर अबाउट है उसके। तो अपना मॉडल प्रॉपर है। आई मीन बेस्ड ऑन दिस टेस्ट डेटा वी कैन से दैट मॉडल समवॉट इज गिविंग प्रॉपर वैल्यूज। क्लियर, समझा आप लोग को? हम लोग ने क्या किया अभी, टेस्ट डेटा हम लोग ने क्यों यूज किया, अभी टेस्ट डेटा का यूज क्या हुआ, समझ में आया सबको? क्या हम लोग ने स्टार्टिंग में एक पहला मॉडल बना लिया, उसको एक रैंडम एक वैल्यूज दे के हम लोग ने चेक कर लिया, बट वो प्रेडिक्शन आया तो कोई भी बोलेगा ये आउटपुट राइट है कि रॉन्ग है, ये मतलब प्रेडिक्ट जो कर रहा है ये कैसा भरोसा करे इसके ऊपर। तो अपने पास टेस्टिंग डेटा था, टेस्टिंग डेटा भी हम लोग ने पूरा दे के देख लिया और उसका वैल्यूज आया, तो हम लोग थोड़ा सा मैच करके देख लेंगे इधर से कि वो आसपास कुछ बता रहा है क्या, एकदम टोटल वेग बता रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 10.3 के लिए वो बता रहा है, 10.3 10.5 के लिए बता रहा है वो यहाँ पे 129214 1292, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1218, तो इसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। फिर 10.3 के लिए इधर क्या है 122391 और ये 127203, तो ये थोड़ा पास में है, राइट। लास्ट वाला थोड़ा सा अलग है, बट एनीवे समवॉट आसपास जा रहा है, 12,000 के तो अंदर है, ओके। तो ये पास में जा रहा है, आई मीन 1,29,000 के आसपास है वो। तो what is the tolerance variance which we can look at? Any number is there? जैसे आपने 12,000 बोला अभी, तो हम लोग वो जो आर स्क्वायर जो वैल्यू था अपना, अगर देखो हम लोग टॉलरेंस इसके बेसिस पे नहीं, हम लोग टॉलरेंस कुछ कोएफिशिएंट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, राइट, फैक्टर के बेसिस पे, या फिर कुछ दूसरा हम लोग टेस्ट इसके अंदर टेस्ट फायर कर सकते हैं, और जिसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा मॉडल एक्यूरेट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, एक मिनट, लेट्स से मैं इसमें बोल रहा हूँ कोरिलेशन मैं निकाल रहा हूँ दोनों के बीच में। प्रेडिक्शन 2 है मेरा, राइट, जो हम लोग ने अभी जस्ट प्रेडिक्ट किया, और हम लोग का टेस्ट डेटा जो है उसका सैलरी। तो अगर आप सिर्फ प्रेडिक्शन को प्रिंट करोगे, एक बार प्रेडिक्शन को प्रिंट करो, देखो तो ये जो प्रेडिक्शन जो हम लोग का आया ये मॉडल से, राइट, ये इसके अंदर टेस्ट 2 में ये वैल्यूज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा वैल्यूज आया मॉडल से और जो मेरा टेस्ट डेटा के अंदर जो सैलरी का वैल्यू है, दोनों के बीच में मैं कोरिलेशन देखता हूँ, राइट। तो मेरा कोरिलेशन देखो यहाँ पे क्या है, कोरिलेशन मेरा 0.91 आया, मतलब एकदम हाईली कोरिलेटेड। इसका मतलब मेरा जो आउटपुट आ रहा है और जो एक्चुअली जो टेस्ट डेटा में आउटपुट है वो ऑलमोस्ट हाईली कोरिलेटेड है, मतलब मेरा मॉडल अच्छा है। क्लियर? whether all of you understood what I did now? मैंने कोरिलेशन निकाल लिया दोनों में, राइट, जो मेरा मॉडल से मेरा जो सैलरी आया और जो टेस्ट डेटा के अंदर मेरा सैलरी है, ये दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है। देखो हर एक वैल्यू, अगर समझ लो मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड है, तो थोड़ी मैं एक एक चेक करते बैठूंगा, राइट। इतना तो मैं नहीं देखने जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, कोरिलेशन मैंने फायर कर लिया और मेरे को कोरिलेशन से समझ गया कि 91% है, तो मेरा जो दोनों कॉलम है, आई मीन जो दोनों डेटा है वो हाईली कोरिलेटेड है। इसका मतलब मेरा एक्यूरेसी ज्यादा है, 91% है यहाँ पे। क्लियर? So ये this basically goes row by row and does a comparison between your prediction and your actual data and gives you this correlation value 0912 whatever. नहीं समझा नहीं क्वेश्चन में आपका, क्या पूछ रहे हो सर? जिस कोरिलेशन का जो कमांड फायर किया ना आपने, यस।
So basically that is doing the prediction one, which जो आपके previous command जो था preds2, Yeah, right. With our that it model जो takes अपने that को मिला है. values, it takes that values and test data values and does the Yes. correlation and finds out how much of a variance is there. So here it says 0.912, that is the highest variance, means matching नहीं, सुनो. value. आपने ये दोनों बराबर बोला. देखिए, कोरिलेशन एक फंक्शन है, राइट? ये बाय यूजिंग COR फंक्शन I can find out the correlation between any two variables. Okay? So here what I try to do, अपने पास टेस्ट डेटा में already we have salary column, right? So that is the Right. known, that is the real values. But we Right. have got some values from our model and which we have passed the years of experience, and through our model we got prediction values, right? Now I wanted to check whether we have got the predicted values, whether those are somewhat approximate same or not, right? Because if there will be 10,000s of records will be there, it will be very difficult for us to check one by one record for each values of years of experience, whether the salary is proper or not, right? Which is whether it's matching with the actual data or not. So simply we did one trick. We try to find out the correlation between these two things. So we fire this core function and we try to find out what is the correlation between these two. For example, if we will get I mean the somewhat the values near zero, right? So if we are getting any values near zero, that means that is not correlated. That means our model is not good at all, right? It's predicting something else. But here we are getting 0.91. That means it's indicating that there is a very high correlation between these two data. Okay, so our model is not predicting something else. It's somewhat predicting somewhat similar to the actual data. Clear? Yes. Yeah. Okay. So this was the linear regression what we could do, and in very simple way. Okay, I made it very I simplified this one to a very low level so that each and everybody can understand this thing, right? Tomorrow if we'll have to do with different factors, right? So we will have to do what? For example, suppose in place of one data, right, you want to do on multiple factors, then here we are having, I have written in LM function salary till years of experience, right? So here what you can do with the help of plus, you can mention the other columns also, I mean other factors also, and then you can train your data. So that will become a multiple linear regression, right? You will get a lot of code online also, right? And I'll try to post that multiple regression code also. And what I'll do, I'll take some other example so that you will come to know some other example, right? Let's say either stock analysis or something else, and I'll show you multiple regression ka thing, and then I'll post that particular code on the WhatsApp and as well as on the Google Classroom also. Okay, so later on जिसको practice करना वो कर सकता है. Clear? तो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे years of experience, यहाँ पे जहाँ पे लिखा वहाँ पे plus करके we can extend the number of columns over there. So we can include over there lots of dependent columns in that part. Clear? Yes, sir. Okay. Yeah. Okay, so Sir, one question is, see, yes, in yes, the yes, earlier please. example where you gave, you seen for 10.2, 10.5 years experience, and then you predicted the 20 years figure for 20 years experience. Yes. On the same lines, we can do it for 15 also. Yes. See, for so, example. see, 10 was very straightforward, or double कर सकता है. But like when it is yes. like if देखो I want यहाँ to पे find for 18 years or 7 or say 13 years, then हाँ देखो सुनो यहाँ पे तो मैंने खुद से लिखा है ना ये 20, ये आप कोई भी नंबर ले लो उसके लिए बताएगा, राइट? So Kenneth, can you repeat your question again? See, now the data was there up to 10.5 years of experience. Now, if we want to do a prediction as to what would be the salary for say 13 years or 17 years, very odd figure. He's taken 20 years, which is fairly simple to calculate. I can take 10 years and double it and find. That is what we are doing. यहाँ पे देखो 1,21,000 intermediate, 15, 17, something like that. Yes. Oh, very odd figure. Like say 33 years experience.
हाँ हाँ ठीक So है, देखो how यहाँ do you पे know that it is going to come more precise? So this It all depends upon the, I think, algorithm or the formula what is being so coded actually. Yeah. So this is what we have found out this correlation. So it will be somewhat 91%. It will be accurate only. Okay. You're going to check for 33, sir. Now. Is there a possibility that it goes up to 99% accuracy? Yes. And what Yes, are the if, scenarios where it goes to 99%? See, it And can go to. second question is like if you are getting a very vague accuracy level, say 75, 0.75, then what could be possibly wrong in that? So 75 means देखो 75% accuracy will be there. मतलब हर एक डेटा के लिए तो आउटपुट प्रॉपर आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? 75% ही है. अगर मैं 100% बोल रहा तो सब डेटा के लिए प्रॉपर आएगा मेरा, आउटलायर्स नहीं रहना चाहिए वो. ओके, तो सब डेटा के लिए ऑलमोस्ट प्रॉपर आएगा. तो इफ आई एम सेइंग 75 इतना नहीं है, 50% मतलब उससे भी कम है. जितना जीरो के पास में जाओगे उतना ज़्यादा आपका जो मॉडल है वो वेग आउटपुट देगा आपको, उतना रॉन्ग देगा. What is the reason for getting 50 or 75%, sir? The input data is incorrect or? The training is not proper. Only that. देखो यहाँ पे अभी What मैं is आप not लोगों को pro- what is not proper, sir? एक मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ. समझ लो कोई स्टूडेंट है, राइट? अब मैं उसको कोई सम्स दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए. लेट से मैं एडिशन का सम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए. तो उसको मैंने ट्रेनिंग दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, वो कर लिया. कल को मैं वापस सम दूंगा, वो नहीं कर पा रहा, राइट? मतलब जो ट्रेनिंग हुआ वो प्रॉपर नहीं हुआ ना, उसने लर्न नहीं किया बराबर से, राइट? इन द सिमिलर वे जब भी हम लोग मशीन को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो अपना ट्रेनिंग वो प्रॉपर नहीं हुआ है. अब वो ट्रेनिंग उसको ट्रेनिंग रॉन्ग होने के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं. मेरा डेटा ही रॉन्ग हो, मेरा डेटा मैंने क्लीन नहीं किया हो, मेरे डेटा मैंने जो कंसीडर किया है वो फैक्टर्स उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, राइट? तो फिर वो अफेक्ट कहाँ से करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मेरे. Missing data also. हाँ या तो मेरा आउटपुट आने के बहुत सारे रॉन्ग हो सकते हैं, राइट? बहुत सारे रॉन्ग चीजें हो सकती है. So अभी देखो ये 30 if there are any not applicable columns, we need to fill in those columns by taking mean and fill all those columns and then run. Clean the outliers. We fill with mean and median and all those things for missing values, right? If there is any column which is not required at all, for example मैं सैलरी बोल रहा हूँ, राइट? सैलरी का एम्प्लॉय का करना है, राइट? और उसके अंदर एक कॉलम है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस, लाइक कंपनी का एक्सपेंसेस और इनकर्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी मतलब हाँ ऐसा कॉलम है जिसको travel allowance, राइट. See, I'll tell you one thing. Sir, one example we may take this like performance of students on the basis of number of practice tests. Suppose ये भी कर सकते हैं या फिर number of hours he is spending on particular subject in a day or in a week. अगर जो बंदा 3 घंटा पढ़ता है 5 घंटा पढ़ता है तो आउटपुट ज्यादा हो रहा है कि नहीं? आप समझ लो ये डेटा सेट में जो आपने अभी दिया उसमें समझ लो एक डेटा है कि उसके पास बाइक है कि नहीं है, या फिर उसके पास कार है, या फिर उसके पास अम्ब्रेला है कि नहीं है, लेट से. अब ये डेटा का कुछ क्या मतलब है उसके साथ में, राइट? हाँ, अगर एक बार मोबाइल रहता था तो हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते थे कि मोबाइल ज्यादा देखता रहेगा इसलिए मार्क्स नहीं आ रहा लग रहा है, राइट? So if any column is there which is not at all related to that target variable, then उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं. अपने ट्रेनिंग देने के टाइम वो कॉलम देने का जरूरत क्या है, राइट? वो एक चीज कर सकते हैं. और दूसरा चीज है कि ज्यादा हाईली कोरिलेटेड कॉलम रख के भी क्या मतलब है, तो वो सब कॉलम्स हम लोग रिमूव कर सकते हैं, उसमें से 1-2 कॉलम्स ले सकते हैं. तो और दूसरा चीज हम लोग बहुत सारा चीज ध्यान, जैसे मैंने डेटा लिया और मैंने डेटा को ट्रेन किया, मेरा मॉडल बन गया. कहीं ऐसा तो नहीं मेरा मॉडल ओवर फिट हो गया? मतलब फिट होना एक अलग बात है, ओवर फिट होना एक दूसरा बात है, अंडर फिट होना एक दूसरा बात है, राइट? तो मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा मेरा मॉडल ओवर फिट हो गया कि अंडर फिट है कि फिट है, प्रॉपर है, राइट? तो ये सब भी चीजें मेरे को सब देखना पड़ेगा. अभी देखो हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट हर एक चीज में कवर कर लूँ ये वर्कशॉप में, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? तो ये सब चीजें आप लोगों को बाद में ये सब देखना पड़ेगा. इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें. तो एक लेकिन ध्यान में रखो कि आपका मॉडल आपको प्रॉपरली ट्रेन करना है. आपको डेटा आया, जितना ज्यादा हो सके डेटा उतना बड़ा डेटा सेट लो, और डेटा सेट रैंडम मतलब होगा थोड़ा तो अच्छा होगा. अदरवाइज एक ही ट्यून में सब डेटा है तो मेरा मॉडल उसको करेक्टली पिक कर लेगा और ऐसा हो सकता है मेरा ओवर ट्रेंड हो जाए डेटा, राइट? तो ये सब चीजें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा.
आपको बायस, वेरिएंस, ये सब भी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जो सब टर्म्स है रिलेटेड टू दिस ट्रेनिंग। तो जब इसमें घुसोगे आप लोग तो बाद में आपको समझ में आएगा और भी टर्म्स निकल के आएंगे, राइट। अभी सब कुछ लेना ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? आइडिया आ गया आप लोग को सभी हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, प्रेडिक्शन वाले इसमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now we can go to the visualization, right? Visualization part. Let me create a file. So what time are we taking break? 3:30 को लेते हैं ब्रेक, ओके? सर विजुअलाइजेशन मींस चार्ट प्रिपरेशन, ग्राफ। हाँ, विजुअलाइजेशन सब ग्राफ रहेगा, सब विजुअली देखेंगे हम लोग सब। ठीक है, या फिर अभी ब्रेक ले लो, फिर आ जाते 4:15 को, जैसा बेटर रहेगा सर। Yes, sir. ठीक है Sir, let's try to have a short break because we lost 20 minutes in the beginning. यस। तो देखो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब मैं 20 मिनट्स ज्यादा लूंगा तो कुछ अलग पढ़ा दूंगा, राइट। मेरे माइंड में जितना है उतना मैं कवर कर लूंगा, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं कि आप लोग का कुछ लॉस होगा, ओके। लेकिन ठीक है, मतलब 4 बजे भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं। It's 3:15 right now. We'll come back at 4 o'clock. Yes, no issue at all, okay? Yes, sir. Yes, sir. 4 o'clock will be good. Yeah. Sir, one query, personal Yes. query है sir. Yeah. जैसे I asked you one question कि suppose I have to make a paper that quality of engineering college depends on this parameter, ठीक है? ये डेटा मेरे पास कलेक्ट किया मैंने। आप पेपर बना रहे हो, क्वेश्चन पेपर? नहीं सर, रिसर्च पेपर है। आई एम इन टीचिंग फैकल्टी, आई एम फैकल्टी हियर, ठीक है? ओके। तो कौन से कॉलेज में हो आप? मैं सासमीरा कॉलेज में, वर्ली का MBA कॉलेज सासमीरा। वर्ली का मतलब कहाँ पे है? दादा वर्ली। अच्छा, वर्ली, ओके। सासमीरा वर्ली। So suppose the data is there with me and it is a part of my PhD research also. PhD का भी ऐसे ही है, but it is on B स्कूल पर है, ठीक है? तो उसमें जैसे स्ट्रक्चर मॉडलिंग लगाते हैं, लेकिन इसमें हमें सोचा था अगर मैपिंग करते हैं, सपोज आई कैन एक्सट्रैक्ट वन पेपर फ्रॉम दोस डेटा। तो जैसे क्वालिटी पे जैसे कुछ हमने काम करते हैं सर, सुनो आप और मैं बाद में बात कर सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि अच्छे से डिस्कस करें, क्योंकि सबके सामने मतलब ये सब, और PhD का भी आपका है तो मतलब नहीं बनता इधर, ओके? मैं आई विल कॉल यू सर समडे। हाँ, मतलब हम लोग बाद में आराम से बात करते हैं, और मैं भी माहिम में ही कॉलेज में जॉब पे हूँ, तो आप कभी भी मिल भी सकते हैं। हाँ बराबर है, क्योंकि मैं आपको एक सेशन भी देने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो इन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ वन एसोसिएशन, जहाँ पर कि फैकल्टी लोग ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड वो कॉन्फ्रेंस वगैरह कराता रहता हूँ, जैसे समटाइम्स पाइथन पर, समटाइम्स इस पर गेस्ट लेक्चर, सेमिनार्स, वो सब करवाता रहता हूँ। एंड